जो क्वेश्चंस अब पूछे हैं, क्योंकि कल कई क्वेश्चंस रेज हुए थे जिनके आंसर्स सिर्फ उन लोगों के पास हैं जो यहाँ की सक्सेस स्टोरीज हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम टेक अ सीट, आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू वांट regarding Oman. We will start in about 5 minutes, but please sit down here. My name is Imran Ikram. I am a Group Chief Executive Officer of Mohammad Riaz and Partners, which is a leading company in Oman. We have a business of around 200 million US dollar turnover company, and we have manufacturing unit plus we have a trading units. So today we are the largest water bottling plant in Oman, and we have a dairy production of ice cream. And we are the leading building material company in Oman also. We have 46 branches in You will Oman. have to get a mic. With the staff of 2,000 people staff in the company. I started my career in 1993 as I started working in petroleum company. Tell the sector and that's it. We can help you in building material sector plus the food sector. Whatever your questions, we can answer for the both categories. Which categories? Food sector And building material section. food sector and building materials. Sir, you need no introduction, but for the audience, sir. Assalamu alaikum. And my name is Said Fayaz. I am dealing with the real estate and marine services. So you are free to ask anything about business in Oman. We welcome to you all. Thank you so much. So, Mr. Fayaz Shah is the success story in the real estate sector. Sir, you Assalamu already alaikum. introduced, yes. My name is Saif, and I am associated one of the leading marketing and media agency company in Oman. I've been here since 1999 and been associated with so many multinational companies. So we are dealing with British Petroleum, Oman Oil, Huawei, Unilever, and so many other brands. Any questions, any related queries for branding and marketing related, please, you feel free to ask. So, Thank you. branding and marketing, please My name is Kamar Riaz. speak loudly. My name is Kamar Riaz. I am CEO of Mountain Top, Urban Stone and Stone World. We are basically a marble manufacturer from Pakistan. In Oman also, we are dealing with mines. From Ibri, there is an area in Oman, and from Pakistan, from Quetta. So any question related to marble industry, I am here. Thank you very much. This is my stall. I would also request the staff of the Pakistan Embassy to get off their seats, try to mingle and create a sense of quietness there. Try to please get the session in order. Okay, Ji, give the mic here. And Imran Saab, you just mentioned you also deal in trading. Now, does that also mean that you can also possibly be interested in acquiring a product from Pakistan and then trading it or distributing it in Oman and the rest of the GCC? Would you be open to that? The product being food related. Madam, thank you very much for your question. We are mainly now in these days, specifically for the last like 2-3 years, You'll we are have to be focused in louder. Imran, louder. Sorry. Yes, we are a trading company plus we are a manufacturing company. If the product is good and product have a good, like we will feel that the product we can sell in Oman market. Yes, we can do that. Then you have to take a closer look at my products again. We will do that. We will discuss that, inshallah. Yes, thank you. But what are the challenges? बड़े 2-3 काम क्या करने पड़ते हैं इंसान को? Actually, when there is a product study. Actually, the most important thing in a food sector that we need to study the proper market. What is your competition in that market? Who's the major competition? वो कहाँ से पता चलता है? Plus, sir, there is इन्होंने ये जजमेंट करनी हो कि इनके कंपेटिटर्स कौन है, ये आ सकते हैं कि नहीं, ये कहाँ जाके पता करेंगे? Sir, Mr. Ambassador, sir, we have done our research regarding No, our it's particular not product. only about you. It's about the many people who are waiting here for these answers. Understood. Sir, somebody comes, he needs a market assessment, he needs to know about the products. Where does he go? Well, again, for this, I believe probably we need to look into the segment of the market. Because in Oman, we need to have like pure Omani products. We need to have pure like Western products and for our like Indian Pakistani products. So for this, I think we need to look like what is the target market for our product. For that, we need to certainly, look into the competitor
their prices, their positioning, and then we can go back and look our product, what I mean exactly we need to produce and what need to deliver to the country. So, thank you. Thank you. Thank you. इसमें आप ये कर सकती जोर हैं से। इसमें आप ये कर सकती हैं कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप किस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आपके लिए अहम कि आप खुद किस में अच्छी हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट है जिस पे आपको बड़ी आप अच्छा काम कर रही हैं, करना चाहती हैं, और आप ओमान में एक सेटअप ओपन करना चाहते हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग चूज़ करने पड़ेंगे और आपको सर्च करना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड कंपनीज ओमान में कितनी है और कौन है, उनसे फिर आपको बात करनी पड़ेगी। कहाँ से चेक करेंगे, किसके पास है? इट्स वेरी इजी टू चेक ऑन वेबसाइट्स। कैसे? फॉर एग्जांपल इफ आई से कि यहाँ पे राइस का कारोबार है, हाँ। यू कैन सर्च ऑन गूगल राइस कंपनीज इन ओमान, इट्स वेरी इजी। और सेकंड थिंग, यू कैन आस्क चैम्बर ऑफ ओमान, go to Chamber of Commerce in Oman and you can get all the list of that. It's very easy to talk with them and get all the information, all the numbers, and you can see who is doing what kind of revenue, what kind of scale they are doing that business. It's very easy for you to certain level, which level you can open your branch or your company here in Oman. If one were to find distributors, how would I go about that? डिस्ट्रीब्यूशन का It's again very easy. For example, any product you are doing, you are bringing some, for example, Vital Tea. I'll say it's their stall. You know the malls here. There are maybe 20 malls, big malls. You have to go there to meet their managers, to meet the उनके जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ, जितने भी उनके इसमें उनके जो मैनेजर हैं जो खास तौर पे जो इस तरह की बाय करते हैं चीज़ें, उनसे आप जाके मिलना पड़ेगा उन्हें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका जो वॉल्यूम ऑफ बाइंग है वो क्या है। देखिए, इसमें मैं एक बात बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए फूड स्टफ लाइन में अगर आप देखती हैं तो 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर ओमान में काम कर रहे हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको टारगेट करना पड़ेगा, वो आगे रिटेलर्स के साथ काम कर रहे हैं। जी, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स तक कैसे पहुंचा जाए? बिकॉज माय प्रोडक्ट इज प्योरली B2B, इट इज नॉट वो अ B2C आपके पास प्रोडक्ट। एक आपके पास एम्बेसी उसके लिए है, दूसरा प्राइवेट एजेंसी जैसे हमारी कंपनी है, हम उसमें फिर आपको प्रोडक्ट की रिसर्च करके देंगे, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बताएंगे, उसका वॉल्यूम बताएंगे, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो बताएंगे, और फिर आप सिलेक्शन करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर की, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे रिटेलर को देना है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ अपनी कंपनी फॉर्म करेंगे, अपनी CR इस्टेब्लिश करके खुद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकेंडली, या आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। वो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, उसको स्टडी करें आप। पाकिस्तान से हमें एक, मैं ये देखता हूँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो पैकिंग का आता है। अगर आप ये देखें कि इस वक्त फूड में हम एक ब्रांड है दुनिया में या दो जो एक पूरे कैनवस पे अवेलेबल है, वो एक शान है और एक रूह अफ़ज़ा है। इसके अलावा प्रोडक्ट वहाँ बहुत हैं। मतलब अगर आप ये देखें कि हमारे नेबरिंग कंट्री में, अब बांग्लादेश लें, उनका एक प्रोडक्ट है, उसने 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट इस वक्त पूरी दुनिया में पिला दिए। प्राण की एग्जाम्पल आप लें, इंडिया के तो सो मैनी प्रोडक्ट्स हैं। हमें ये करने की ज़रूरत है कि जितने आप लोग हैं वो यहाँ पे सुपरमार्केट में जाएं, प्रोडक्ट देखें वो क्या है, उसकी पिक्चर्स लें, उनकी पैकिंग को स्टडी करें, फिर वो ऊपर वर्किंग करें। सीधा या एम्बेसी के पास या थर्ड पार्टी एजेंसी को जाएं किसी के, जी हमें ये काम करना है, यहाँ इजीली पॉसिबल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। Hello, do you have to do this right now while the program is on? Go grab a seat, you are called here. I just want to add one small line. Actually, labeling requirement you have to, there's the local regulations also. ओमान के अंदर फूड के लिए रिलेटेड गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड रेगुलेशंस हैं. We need to follow that regulation for every food product. So that is very important actually. I just want to add that, please. काशिफ, डिस्ट्रीब्यूशन में बोलो। शी इज सेइंग मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ है। पता है उनको, आगे चलो। अच्छा चलें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बेस्ट तरीका जो सैफ साहब ने बताया वही है, पहले आप देखें कौन डिस्ट्रीब्यूटर है इधर ओमान में। लाइक राइस जिस तरह उन्होंने बताया मदीना, आप उनके पास जाएं, उनको अपने अगर वो एक सज्जाद इधर का माइक कहाँ है लोगों के लिए? ब्रांड उनके पास डिजिटल माइक कहाँ है? इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट आई मीन वेरी डिफिकल्ट। नहीं, लेकिन आप सब लोग ना वो बातें बता रहे हैं जो आपको पता है। अगर बिल्कुल एक नोविस है, वो पहली दफा ओमान की सरजमीन पे आया है,
एक तो आपने कहा वो वेबसाइट से जाएगा, सर हमारे दूसरा पाकिस्तान- वो सीधा आप लोगों के पास आ जाए। जी जी, हमारे पाकिस्तानी ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, क्यों ना वो रियाज साहब से मिले। अगर उनको ये food का- आंसर है इसका कि वो आप food का जब business आए है, वो तो उनके पास आप जाएं। पाकिस्तान के सक्सेसफुल बिजनेसेस बिजनेसमैन है, उनसे गाइडेंस लें आप लोग। जिस तरह आईटी और फास्ट फूड रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है मुझे, मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको लोकेशन भी बता सकता हूँ कि किधर किधर अभी चांसेस हैं चलाने के। अभी जितने भी हमारे पाकिस्तान से आते हैं सब कोशिश करते हैं जी मस्कत के अंदर ही हमने रेस्टोरेंट बनाना है, और फेल होते हैं वो, क्योंकि मान तो बहुत बड़ा है। सिर्फ मस्कत तो एरिया नहीं है, मस्कत से बाहर क्यों नहीं निकलते हम लोग? अगर मस्कत में कैपेसिटी 500 है तो अगर 1000 रेस्टोरेंट बन जाएंगे किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो जिस तरह हमारी 11 ब्रांचेज हैं, हमारी मस्कत में सिर्फ 2 हैं, बाकी हमारी ओवर ओमान में है, डिफरेंट लाइक सोहार में है, सहम में है, तो हम कामयाब इसीलिए हैं। सो सर एक मिनट आपको माइक देते हैं, व्हेन यू हैव द माइक ओनली देन स्पीक। इसका एक आंसर ये है, अतीक इफ आई मे रिक्वेस्ट यू और सजाद को काइंडली प्लेस अ सेगमेंट। मेरा नाम हसनैन हैदर आप अगर इस इतनी आहिस्ता आवाज में बोलेंगे है, करते हैं और हम यहाँ पे आए हैं तो हमें ऑर्डर्स तो मिले हैं, लेकिन क्रेडिट की मार्केट है। तो हम जिस बात पे कंफ्यूज हैं, बड़ा एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन यस है यस कि अगर कोई हमें एक रूटीन पेमेंट का चेक देता है और वो हम उसको सप्लाई देते हैं और वो चेक कैश नहीं होता, तो हमें ओमान गवर्नमेंट की तरफ से क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। द चेक बाउंस आपका जो सवाल है इसमें यह है कि तो ओमान में काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं चेक के, लेकिन उसका फॉलोअप बहुत लंबा है। तो उससे अच्छा आप अपनी कंपनी की पहले एक क्रेडिट एप्लीकेशन बनाएं और कोशिश करें कि उसमें किसी लोकल ओमानी जो उनके स्पॉन्सर हैं उसकी गारंटी लें और चेक भी उनका लें। क्रेडिट एप्लीकेशन कहाँ से बनती है? वो डिफरेंट ड्राफ्ट अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, वो आपको अपनी कंपनी के नाम से उनसे फिल करवाने होंगे, दूसरी जो पार्टी है। ये जो सारे काम है, जिस तरह कल खालिद साहब थे, सर बैठे हुए हैं, डू वी हैव पाकिस्तानी एडवाइजरी कंपनीज ऑन दिस? फिलहाल ऐसी कुछ भी नहीं है, हम भी सर्च करते रहते हैं, हमें तो नहीं मिली। हम खुद ही लीगल जो हमारे एडवाइज़र हैं उनसे पूछ के रहनुमाई लेते हैं कि ये चेक की, लेकिन नॉर्मली मेरे से पूछें तो कोई वैल्यू नहीं है। चेक की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं है जी, क्योंकि सीधा आंसर। अनलेस के आप कल अगर करें, क्योंकि चेक बाउंस हो जाएगा तो गवर्नमेंट का प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, फॉलो अप करना पड़ेगा आपको, लेकिन मे भी उसमें 1 साल भी लग सकता है। ऐसी जी अस्सलाम वालेकुम। आप लेना माइक लें, बोलें पहले। हाँ यस। आपकी बात को ऐड करते हुए एक तो ये कि लोकली बड़ी अच्छी अभी सर ने बात बताई कि आप लोकल जो हम लोग जितने लोग हम बैठे हो हम आपको गाइड कर सकते हैं बेहतर कंपनियों के बारे में कि कौन सी कंपनी रिलायबल है और कौन सी कंपनी रिलायबल नहीं है। रिलायबल कंपनियां हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि जब आप, जैसा काशिफ भाई ने आपको कहा कि जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें, अगर आप 2 तरीके हैं इसको सिक्योर करने के बिजनेस, या तो आप एलसी के ऊपर चले जाएं, लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर। इफ़ यू गो ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट विच इज़ ऑटोमेटिकली बैंक गारंटर आ जाता है उसके अंदर। हर कंपनी जो बायर है वो आपके लिए एलसी खोल सकती है। अगर वो लेटर ऑफ क्रेडिट खोल दे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सिक्योर हो जाएगी डील। नंबर 2 ये है कि अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें तो इन मुल्कों के यार अंदर बात regulation तो सख्त सुनो, है। बात सुनो। वो एक नया बच्चा है, आप बताएं डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए लॉयर चाहिए, वो खुद कर सकता है? एजुकेशन लेवल क्या चाहिए? एडवाइजर चाहिए? पाकिस्तानी नहीं चाहिए? सर, कोई एडवाइजर नहीं चाहिए। बिल्कुल बिजनेस को बड़ा इजी हैंडलिंग है कि आपको उस कंपनी का ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, उसका सीआर पेपर और आपकी कंपनी के सारे सीआर पेपर, उसके लाइसेंस सारी आपके पास, और जो ओनर्स हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। और वो क्रेडिट फॉर्म, हर कंपनी का अपना क्रेडिट फॉर्म है। वो क्रेडिट फॉर्म के अंदर आप ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, बैंक की आप बैंक स्टेटमेंट्स, उसके सीआर की कॉपी, आईडी कार्ड्स ओनर्स के, वो सारे अगर आप ले लें तो अल्टीमेटली इस मुल्क के अंदर लॉ का बिल्कुल अप्लाई होता है और लॉ के अंदर वो आप कर सकते हैं उसको। जी अस्सलाम वालेकुम। एक दूसरा भी है कि एक यहाँ इंश्योरेंस हो जाती है, क्रेडिट की इंश्योरेंस होती है, क्रेडिट बैरो है, ठीक है, वेरी सिंपल। आप कोई भी काम करने से पहले आप वो क्रेडिट बैरो से इंश्योरेंस ले लें। क्रेडिट बैरो, वो यहाँ एक कंपनी है जो बोरो। बैरो,
तो वो क्रेडिट इंश्योरेंस हो जाती है, वो इंश्योरेंस करवा लें, फिर आपके लिए थोड़े और आसानी हो जाएगी। इसमें बड़ा आसान सा इसका हल है। आप पाकिस्तान से यहाँ उन्हें भेजना चाहते हैं अपना सामान, उन्हें के बैंक एलसी ओपन करें आपके बैंक के नाम पे, ठीक है, आपकी कंपनी के नाम पे जो आपका बैंक अकाउंट है। तो उस पर क्या होगा, बीएल जो जब आप मटेरियल अपना लोड कर देंगे तो एक बीएल बनता है, वो बीएल आप बैंक को देंगे, वो बैंक आपका एश्योर करेगा कि वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, फिर वो बीएल उन्हें देंगे। तो ये दोनों साइड पे होता है, नॉट ओनली फ्रॉम वन साइड, कि उन्हें जो आपको चेक दे रहे हैं या क्रेडिट बीएल कर रहे हैं आपके साथ, उनको भी ये श्योरिटी चाहिए होगी कि आपके साथ जो डील कर रहे हैं वो आप मटेरियल उनको भेजें। आखिर वो क्यों ब्लाइंडली आपको पैसे भेज दें। तो भी सबसे सेफर साइड हम लोग ये कर रहे हैं एक्सेलेंसी, अभी मार्बल हम लोग लेके आते हैं, उसका सबसे सेफर बीएल है, बीएल आप बनाएं और बैंक एलसी करें, बैंक एलसी ऑन साइट, सीएडी का। अच्छा, मुझे कैश आप केस डॉक्यूमेंट आप देखें, आम इंसान को बताएं, बीएल स्टैंड्स फॉर व्हाट, सीआईडी स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर जो लोग शिपिंग से वाबस्ता हैं उन्हें पता है बीएल कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट भेजते हैं कंटेनर्स के थ्रू तो उसका एक बीएल बिल ऑफ लीडिंग डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लीडिंग। आपसे सवाल पूछा है, आपको ये टर्म्स का पता है जो ये बता रहे हैं? माइक दो ना यार उनको यार, द क्वेश्चन इज कंटिन्यूइंग। हाँ जी, खड़े हो। हाँ सर हम यहाँ पे ला रहे हैं ना, नहीं आप ला रहे किसी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं पहले जी। मतलब हमारा कोई क्लाइंट है 500 बैग्स का, कोई 800 बैग्स का, हम अपने वेयर हाउस में अपनी सप्लाई ले आए हैं। कोई एक अमानी क्लाइंट है, किसी को 300 बैग चाहिए, वो रूटीन पेमेंट में लेता है कि कोई किसी की 1 मंथ के बाद है, 40 डेज के बाद है। अब ओवरऑल 80% जो मार्केट है वो इसी पे बेस कर रही है, एनिमल मार्केट फीड की। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मटेरियल यहाँ पे आ गया है जी और उसके बाद आपने उनको आगे देना है। सर हम दुबई के लिए जब कर रहे हैं तो हमारे पास जो चेक्स होते हैं ना ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बना आज तक। तो वही सीन क्या यहाँ पे है, वो मैं बस जानना चाह रहा हूँ। एडवांस ले आए हैं चीजें और वो मैं समझ गया, आप यहाँ पे मटेरियल ले आए हैं अपना और अब आपसे कस्टमर कह रहा है कि ये इतनी क्वांटिटी आप दे दें हमें। जी रूटीन में ले रहे हैं। उसका चेक तो है, लेकिन उसकी जैसे काशिफ साहब ने बताया उसका कोई मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो चेक की वर्थ क्या है, बस बाकी चीज़ों का तो हमें अंदाज़ा है। चेक की वर्थ इतनी है कि वो आप फॉलो अप कर सकते हैं उस पर, लेकिन अगर आप कहें कि उस पर आप बिजनेस कर सकते हैं चेक वारंटीज पे, तो ये पॉसिबल नहीं सर। फॉलो अप में वही है ना, वो लंबा प्रोसीजर है। अब एक बंदा रूटीन में इतनी चीजें कैसे हैंडल करेगा, और वो फॉलो अप में जाता है तो बिजनेस कैसे अगर करेगा? आपका मटेरियल यहाँ पे है ना, फिर तो ये सेफ बिजनेस है। जो आपके साथ अच्छा क्लाइंट होगा वो आप मटेरियल देखेगा और आपको पैसे पे करेगा और ले जाएगा मटेरियल। नहीं सर, इसकी 60% मार्केट है ही। एक सेकंड मेरी बात सुने, जब आपको चेक मिल जाता है और वो चेक एक दफा इन कैश हो जाता है, आप उसके बाद भी तो सप्लाई दे सकते हैं, एक दिन की बात है। सर उसमें वो इस तरह करते हैं ना कि मतलब ये जो एक स्टेपल फूड है एनिमल का, इसकी कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा है, तो उसमें वो सारा क्रेडिट मतलब कैश नहीं देते। 40% पेमेंट दे दी, 60% या 50% का वो कहते हैं कि नेक्स्ट ऑर्डर पे लेके जाएंगे, और नेक्स्ट ऑर्डर पे वो छोड़ के अगले बंदे पे मूव कर जाते हैं। सर ये जो चेक बिजनेस है ये सेफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। इस पे आपको थोड़ा अपना और जो वारंटीज हैं वो लेनी पड़ेंगी, इंश्योरेंसेज हैं वो करवानी पड़ेंगी। बस वो 12 इंश्योरेंस वाला मुझे थोड़ा अच्छा लगा है, बाकी किसी बात से टू बी ऑनेस्ट मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। असल में बात यह है कि ये वो बच्चे हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वेयर हाउसेज में चीज़ें ले आए हैं। अब इनको ये समझ नहीं आता कि इनको अगर ड्यूप किया जाएगा तो इनके पास बचने का क्या तरीका है, ये वो पूछ रहा है। बाकी ना यार, द लेवल ऑफ अ बिग बिजनेस इज डिफरेंट। द लेवल ऑफ अ स्मॉल पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर who has one room and who's supplying out of one room, that's different. Sir, देखिए उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि जो जिस भी स्टैब्लिशमेंट को आप दे रहे हैं सामान, आपने उसके सीआर डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं। देखें क्रेडिट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो मुफ्त में तो नहीं दे रहे, आपने उसके सीआर पेपर लेने हैं। और दूसरा जो चेक है वो ब्लाइंडली नहीं रिसीव करना, आपने वो कंपनी के नाम पे लेना है, वो उस कंपनी का चेक होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो वो आप 90 डेज है, 60 डेज है, 120 है, आप केस फाइल कर सकते हैं, एक आपको फौरन उसका जवाब मिलेगा। यहाँ ये नहीं है कि अगर आपका चेक है तो जी चलो भाई भाग जाए, नो। ये इस बिल्डिंग के साथ यहाँ पे जो है वो कोर्ट है, केसेस हैं, एक हेयरिंग में जो है इसका डिसीजन आ जाता है। तो वो आपने चेक जो है वो कंपनी का ही रिसीव करना है, किसी पर्सनल नाम का नहीं होना चाहिए। सर चेक कंपनी के नाम का बना हुआ और बेशक इनके नाम हो, इनके नाम हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर, बट हो कंपनी का, वो कंपनी का होना चाहिए।
उस कंपनी का चेक होना और चाहिए। सर अगर कोई प्राइवेट आदमी इनके साथ डीलिंग कर रहा है जो कंपनी का नहीं है, नहीं, सर, वो फिर सेफ नहीं है। वो सेफ नहीं है। बिल्कुल आप safe नहीं है। अपनी जल्दी सेल्स के चक्कर में अपनी पहले ऑथेंटिकेशन करें। माल को जल्दी निकालने के लिए आप प्रिकॉशंस को ना छोड़ें। आपका बेटे सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है कि अतीक खड़े हैं यहाँ एम्बेसी में, हर वक्त ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसमें ड्यूप हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। लेकिन आप अपनी ड्यू गारंटीज करें माल निकालने के, या पीछे से मालिक के कहने पे ना गारंटीज को थोड़ा ना करें। यहाँ भी होता है बहुत डिफरेंट चीजें, हर मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं। ठीक है, सॉरी सर आपका जवाब देंगे इसका। ये भी एक कामयाब बिजनेसमैन है, इसको दे बैक। किसको सर? आप बताएं जी कैसे आप कामयाब हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे सवाल का जवाब दें, कामयाबी नहीं, मैंने सवाल का जवाब दें। जी मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने सब मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। एक सेकंड बेटे, मैंने यहाँ आपको एक्युलेट्स के लिए नहीं बुलाया। जी, वो बच्चा है, उसके सवाल का जवाब दो। जी यहाँ सबसे पहले जो बिज़नेस का तरीका कार है ये है कि आप जिससे काम कर रहे हैं सबसे पहले उसकी वेरिफिकेशन करें, आया कि ये बंदा रिलायबल है या नहीं है, आप इसकी वर्थ कितनी है। आप पहले मार्केट के अंदर उसके मुतालिक आम लोगों से पूछें जाके। जी आप लोगों से उसके मुतालिक पूछें। अगर आप फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहे हैं तो आप मार्केट में पूछें, यार ये बंदा काम कर रहा है, इसकी क्या वर्थ है, इसका क्या काम है, कितना ये यहाँ माल सेल कर रहा है, उसके बाद उसके साथ मामला करें। और दूसरा, भाई ने चेक का कहा है, चेक की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, चेक की यहाँ has कोई no वैल्यू value। नहीं है। मैं 200 आपको लीगल लॉ को फॉलो करना जी मैंने किए, मेरे चेक रिटर्न हुए, मैंने जाकर कंप्लेन की, कोर्ट में मैं लड़ा, उसके बाद भी मेरे चेक अभी तक पेंडिंग में है, मुझे उसकी कोई पेमेंट नहीं मिली है। उसके बाद आप सिक्योर अगर आपकी लोकल कंपनी अवेलेबल है, लोकल कंपनी आपको चेक लेना है, जिससे सैफ साहब ने फरमाया कि आपको चेक अपनी कंपनी के नाम पे लेना, जो लोकल कंपनी है, तो बिल्कुल वो कोर्ट में, मैं क्योंकि हम डेली बिजनेस के अंदर बहुत सालों से हैं, तो ये बिल्कुल आपका ना लीगल एक्शन बड़ा वैलिड है इस मुल्क के अंदर, और ये इसके ऊपर लीगल एक्शन। इमरान, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल रूम वेयर हाउस पर्सन, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट रियाज एंड एंटरप्राइजेस। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो ना। जी नहीं सर, वो मैं इनको बड़ी छोटी से कह रहा हूँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि अगर किसी का चेक बाउंस होता है, लोकल कंपनी का चेक बाउंस होता है, तो उसी वक्त पुलिस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, और विद इन 3 days पुलिस के ऊपर एक्शन करती है। तो इट्स अगेंस्ट लीगल एक्शन इज। रियाज, यू वांट टू से समथिंग? यस, एक्चुअली ओमान के अंदर हम लोग 20-22 मिलियन रियाल का उधार माल बेचते हैं, और हम लोग हर रोज लोगों से चेक लेते हैं और बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस का तरीका सीखना पड़ेगा आपको। बिजनेस यहाँ सेफ है, चेक भी सेफ है, हमें पेमेंट भी मिलती है, हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं। देखें, बिजनेस में पाकिस्तान में भी आप बिजनेस करते हैं, कोई अच्छे लोग होते हैं, कोई बुरे लोग होते हैं, सिंपल बात है। हम लोग हमारा मॉडल जो है डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश नोबेल प्राइज वाला मॉडल है मेरा। मैंने यहाँ 20 मिलियन का माल बेचता हूँ, और वो बेचते हैं माल, फिर मुझे वापस देते हैं। तो वी आर डूइंग इकोनॉमी, तो हम लोग बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं, डरना नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग मॉडल सीखना चाहिए। चेकों पे माल लोग लेते हैं, हम सारा दिन यही करते हैं, हम लोग यही करते हैं। काम अच्छे बुरे आसव की जो बात है कि आप खुद देखें जाके, आप आंखें बंद करके काम ना करें, आप लोगों को जाके देखें। जो मालक दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ है उसको ध्यान से काम करें, जो दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ है उसको करें काम उसके साथ, समझ गए हो। और आप लोग जाएं, लोगों को मिलें। जो बंदा आपको मिलता है, ये 2-3 तरीके हैं पहचानने के। जो जिस बंदे के पास इजी अप्रोच है आपकी, आप जाकर उसको मिल सकते हैं, उससे स्टार्ट करें काम। जिसको आप मिल नहीं सकते, दरवाजों के पीछे, उनके बाद में काम करें। तो ये छोटे छोटे गुर हैं, हमें तो ये गुर है, हम तो टेलीफोन पे लोगों के बात करते हैं, हम उसको उधार दे देते हैं।
सर ये आप गुर सीखना पड़ेगा आपको। आप हैं सर। ये गुर सीखना पड़ेगा, सबको आ जाएगा। और दूसरा ये है कि किसी ने मार्केटिंग का काम करवाना हो, कोई काम करना हो ओमान के अंदर, ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन बैठे हुए मेरे साथ, ये अपना नंबर भी दे देंगे। इन्होंने कौन कौन सी कंपनियों के लिए काम किया आपको बताते हैं। आप बताएं जी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कौन कौन सी कंपनी का काम कर रहे हैं आप बताएं। देखें, फूड स्टफ में जो है वो तो एक पाकिस्तान की तो मेन आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे फूड स्टफ ही ज़्यादा आती हैं। तो फूड स्टफ में शान यहाँ पे है, वो हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उनको यहाँ पे रिसर्च की, उसकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग की, उसकी कंपटीटर देखे, उन्होंने अपनी पैकिंग बहुत इम्प्रूव की जो यहाँ पे चाहिए थी, इंग्रेडिएंट्स देखे कि कौन से चाहिए। अब उनके पास लाइन जो है वो सिर्फ हमारे एशियंस के लिए नहीं, उन्होंने लोकल्स के लिए भी लाइन अपनी इंट्रोड्यूस की हुई है। उसके बाद अगर आप ऑयल फील्ड में जाते हैं तो वो उनके लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। लुब्रिकेंट्स की हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको हम यहाँ पे बड़े तरीके से देख रहे हैं। और उसके अलावा यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अब जितने भी हैं, होम केयर है उसमें, या उसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसके मुतालिक किसी ने पूछ रहे हैं वो हम उसको यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की कोई भी रिसर्च है, कंपटीशन है, पोजीशनिंग है, उसके लिए आपको यहाँ कोई भी चीज़ चाहिए हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप एम्बेसी आ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कमर्शियल सेक्शन पूरा बैठा है कि आपको किससे मिलना चाहिए। आप यकीन माने हम आपको बहुत एतदाल से मशवरा देंगे और सही जगह भेजेंगे। अपनी एम्बेसी को अपना घर समझें। सर पहले उनका क्वेश्चन है, वहाँ से कर रहे थे, प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ ज़ोर से बोलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, शेख ताहिर बात कर रहा हूँ, ताहिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से। मेडिकल और सर्जिकल का बिजनेस है, ये बहुत बड़ा और एक क्वेश्चन है मिडिल ईस्ट में। मैंने यहाँ कंपनी खोलनी है और यहाँ पे जो मेरे साथ भी अलाइंस करता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ डॉक्यूमेंट्स है जिसकी मुझे मालूमात नहीं है। एक तो मुझे उसकी मालूमात चाहिए कि अगर मैं कंपनी खोलता हूँ तो इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सऊदीया में 2 दफ़ा विजिट कर चुका हूँ, जबकि हमारा जो डेलीगेशन भी गया चैम्बर से, तो हम बिल्कुल फारग होकर वापस आ गए जब पता लगा कि वहाँ पे उनका SFDA लग गया। SFDA जो ना इतना टफ है कि मुझे अभी 6 माह हो गए उनके साथ काम करते हुए, अभी तक पूरा नहीं हो रहा। आप किसकी SRB कह रहे हैं? नहीं, SFDA ये सऊदी फूड अथॉरिटी, ये उनका चलता है। अब मिडिल सारा एरिया इस तरह है। सर आपको मैं किसी के जवाब देने से पहले बता दूं कि मिडिल ईस्ट में गवर्नमेंट के साथ interaction is compulsory for anything. If you set your foot out, you have to know which Omani government agency you have to deal with. As in Saudi Arabia, this is not a laissez-faire free market. You have to be in touch with government all the time. Government is everywhere, and this is how this country works, and it works successfully. There are tight controls, so you have to go through the bureaucracy. आप जवाब दें कि सऊदी इमरान नहीं, मुझे पहले उनसे पैनल से लेने दें। क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद द लोकल पार्टनर, द डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर थिंग्स। यही सवाल है आपका? जी बिल्कुल। जो इधर थोड़ा सा एलिब्रेट कर देंगे सवाल के, अगर मुझे थोड़ी सी उसमें क्लैरिटी आ जाए कि अगर आप कह रहा हूँ कि देखिए मैंने कंपनी यहाँ पे खोलनी है, जो मेरे साथ यहाँ पे अलायंस करेगी या पार्टनर है, या मैं खुद ही इसको ऑनर बनता हूँ, मैं खुद ही ऑनर बनता हूँ, या मैं कंपनी अपनी खोलता हूँ, तो मुझे अपने इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान से जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहाँ लाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं ताकि वो हमारे लिए ईजी हो। सर पहली स्टेज 1 जब आप अपनी कंपनी ओपन करेंगे तो 2 तरह की कंपनीज यहाँ पे हैं। एक तो पार्टनरशिप कंपनीज हैं और एक SPC जो आपके नाम पे कंपनी है, इंडिविजुअल आपके नाम पे कंपनी खुल जाती है। यहाँ पे ओमान के अंदर रेगुलेशंस काफ़ी इजी कर दिए हैं अपने। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ आप 2 से 3 दिन के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड करवा के कंपनी ओपन हो सकती है। नंबर 1 स्टेज 1। फिर स्टेज 2 के अंदर जाके आपको उसके ऑफिस और आपको उसकी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से उसकी अप्रूवल लेनी, स्टाफ की अप्रूवल लेनी पड़ती है। नंबर 2। नंबर 3 थर्ड स्टेज पे आप जाएंगे कि आप क्या प्रोडक्ट यहाँ पे ला रहे हैं। यू नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ लेबलिंग फ्रॉम द फूड अथॉरिटी, दैट इज द रिक्वायरमेंट। और जब आप फूड अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल ले लेंगे तो देन यू कैन इम्पोर्ट एनीथिंग टू ओमान विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन। आपके BL होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, इनवाइस होनी चाहिए और पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए। ये जो सिंपल आपने बताया, ये वेरी सिंपल है। जी आपको बताऊं जो मिडिल ईस्ट का जो रूल अब क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट रूल, मैं इसके ऊपर सर काइंडली माइक अपने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो ना हमारी वो कह रहा है कि होल फैमिली लाइक दिस वन सीजर इन द ऑल टाइप ऑफ सीजर्स, वन सीजर इज ऑल टाइप ऑफ सीजर, ये वन फैमिली हो गई है।
Like Caesar, the cutting forceps is all family. Like this forceps, this Grasper forceps is holding for use surgery. जो Grasper forceps hold है वो एक family है. तो आपको whole family के साथ अंदर आना है. मिडिल ईस्ट में अब ये नया रूल आ गया है. आपको शायद मेडिकल का आपको नॉलेज किसी को भी नहीं है. फूड इंडस्ट्री मैं का आपको बता आदमी दूं, हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ. जी मैं क्योंकि फूड इंडस्ट्री का आदमी हूँ तो मैंने आपको फूड से रिलेटेड बता दिया है. क्योंकि मेडिकल का यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है. जी चौधरी असगर साहब मौजूद हैं यहाँ पे. elaborate जी. on what he is saying? जी आपको असगर साहब आपके साथ बैठे मेडिकल के लोकली कम्युनिटी के आदमी है, वो आपको ब्रीफ कर. अस्सलाम वालेकुम. रिलेटेड जो फार्मास्यूटिकल आपने कहा ना जी, ये आइटम रेस असगर जोर से बोलो. मेडिकल, अच्छा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सर, इसमें ये जो इनके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है फार्मेसी डिपार्टमेंट में, ये तो आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए ना, तो अब मैं आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम. ये आपको I will go to back in Pakistan. आपको असगर साहब अभी 1-to-1 मीटिंग में he'll take you through all the procedures. Okay, thank you very Right? much. Thanks. Right? Second question एक इधर से था जी, please. इधर, this one was next. Kindly जोर से बोलिए. Assalamu alaikum. Sir, first of all, my question is, for example, like we have the audit and taxation platform. So my question is how we can target the Pakistani business community here in Oman. And second question is regarding marbles, such as European market is very good in the quality for the marbles and Indian as a cost effective. So how we can compete as a Pakistani marble products in Oman? Thank you. मार्बल तो वहाँ पे ब्लास्टिंग की जाती है, और एक आप जो है उन्होंने प्लांट जो है स्क्वेयरिंग के लिए लगा लिए हैं, मोनोलामा है, वो सारे करते हैं. इसमें अगर आपने सबसे जो अहम चीज़ है पाकिस्तानी मार्बल की, पॉलिशिंग जितनी अच्छी होगी उतना आपका मटेरियल जो है पूरी दुनिया में जाएगा. पाकिस्तानी का अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिशिंग है वो ठीक नहीं होती, उसके लिए आपको अच्छी मशीनें लगानी चाहिए, ऑटोमेटिक मशीनें लगानी चाहिए. और अब ये चाइना से बहुत आसान है, आप सस्ती मशीनें मिल रही हैं, वो पाकिस्तान में लगाएं, अच्छा पॉलिश करें और पूरी दुनिया में मटेरियल बेचें. Haris, do you have to say something about it? Haris, mic दे दो. सर, वो जो एक नौजवान ने बात की थी फीड की, मैं उस पर आना चाहता हूँ. Please. देखें, पाकिस्तान में भी क्रेडिट मार्केट होती है, ओमान में कोई डिफरेंट नहीं है उससे. हम कंस्ट्रक्शन का काम करें, हमारे पास क्रेन्स भी चेक्स पे हमने ली हुई हैं. लाखों रियाल का जो हमने इक्विपमेंट है वो चेक्स पे लिया हुआ है. चेक्स सिक्योर हैं. पता नहीं मेरे भाई ये सारे क्यों कह रहे हैं सब चेक्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि लेकिन ये बड़े लोग हैं ना, इट्स अ स्मॉल पर्सन यार. सर, बात ये है कि वो जहाँ आएंगे आके पहले ये देखें कि वो माल दे किसको रहे हैं. सारी दुनिया में ये वो अगर वो शॉर्टकट की उसको आदत है गोदाम खाली करने की, वो उस किस्म का बच्चा है ना. सर देखें, बात ये है कि यहाँ सफा वाले हैं, आप सफा को माल देंगे उनका चेक बाउंस नहीं होगा. यहाँ पे तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी इज इम्पोर्टेंट, या जो आपसे डील कर रहे हैं. एंड दैट इज गुड फॉर पाकिस्तान इवन सर. पाकिस्तान में सारी दुनिया में सर, और ओमान है ही क्रेडिट की मार्केट. ये कैश की और ये पाकिस्तान में क्या कैश पे कर रहे हैं सर? यहाँ पाकिस्तान ओमान का मुकाबला नहीं हो रहा. आप लोग प्लीज, नहीं, आपको कोई डिफेंस पे आप शुरू हो जाते हैं सारे. मैं ये कह रहा हूँ सर, बिल्कुल आसान है. और सेकंडली यहाँ चेक की वैल्यू है, चेक पे केस भी होते हैं और डिसीजंस भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, सेकंड क्वेश्चन. उस माइक अपने पास रखो ना यार. तो किस तरह हम लोग असिस्ट कर सकते हैं ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन के लिहाज से, अगर हमें बिजनेस टारगेट करना हो? आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं. आप पाकिस्तान के टॉप बिजनेसेस से जाके पहले मिलें, अपने क्रेडेंशियल्स बताएं. आप एम्बेसी से राब्ता करें, अपने क्रेडेंशियल्स बताएं. द एम्बेसी एक्ट्स एज एन इंटरएक्टिव टूल between the Pakistani community and the auditors and the businesses. There is no other way except to work and fight your way up. There is no shortcut to it. Next question. अस्सलाम वालेकुम. जोर से बोलें. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम है, मैं मस्कत फार्मेसी से हूँ. वो भाई का क्वेश्चन था तो सर उसके बारे में ये है कि जो आपको जोर से बोलना पड़ेगा. मस्कत फार्मेसी तो हर कोने में, और इतने बड़े बड़े उसके बिल बोर्ड्स हैं. बोल आप इतना आहिस्ता रहे हैं. एक्चुअली सर सर्जिकल आइटम्स के लिए इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. फार्मा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कोई भी कंपनी यहाँ पे है नहीं. तो मेरा इन सब से क्वेश्चन है कि आप क्या किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं एज अ लोकल कंपनीज़ जो यहाँ पे आई हुई हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कंपटीटर्स हैं मोस्टली इंडिया से हैं,
या बाकी नेबरिंग कंट्रीज से हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो सिंपली नो बोल देते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। क्या वो किसी खास वजह से नो बोलते हैं सर, या ट्रेंड है कि उन्होंने पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल्स को नहीं? दोनों चीज़ें हैं, इसमें हमारी क्वालिटी का भी है सर हमारे पास, क्योंकि कोई भी आइटम यहाँ पे लाने से पहले उसको ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और वो जैसे ही जाता है वो उनके जो देखते हैं फिर वो मतलब ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड वैसे बड़ी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके लिए फैसिलिटेशन चाहिए हमारे यहाँ, और पूरा वो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पास में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर असगर द क्वेश्चन इज फार्मास्यूटिकल की पाकिस्तानी कंपनी, मेड इन पाकिस्तान कंपनी इसलिए नहीं आ सकती कि ओमान मेडिकल एंड स्पेशलिटी बोर्ड में ट्रेंड है कि उस पर यस नहीं करता, ये सवाल है। सर ऐसा है कि फार्मास्यूटिकल में पाकिस्तान से जो भी कंपनी यहाँ पे आएगी, एक तो एटलीस्ट वो जीसीसी किसी एक कंट्री में रजिस्टर्ड होनी चाहिए पहले ये है। जो कंपनी फार्मास्यूटिकल्स की आएगी इट शुड बी रजिस्टर्ड इन अनदर। इसकी क्या वजह सर? सर ये मिनिस्ट्री को तकरीबन 4-5 साल पहले से जो है ना बायलॉ ये उन्होंने अपने ये किए हुए, ये बायलॉज हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक सिस्टर जीसीसी कंट्री में पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। आगे सर इसमें जैसे भाई ने कहा ना, ये भी हमारी क्वालिटी सर्टन चीज़ें आ जाती हैं इसमें, किसी ने भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या वहाँ से फोकस नहीं किया। हमारे कंट्री के ज़्यादा श्रीलंकन या अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ सप्लाई ज़्यादा जा रही थी, जीसीसी में ना होने के बराबर थी, और टिल नो एज इट इज़ ये सर। असगर तो अगर आपने स्टोन वॉल पे या इस पे पत्थर मारना हो तो क्या तरीका है? एम्बेसी क्या करे, हुकूमत क्या करे, हम लोग क्या करें फार्मास्यूटिकल्स को लाने के लिए? नो डाउट सर इसमें वर्क कर सकते हैं, विद एम्बेसी कोलैबोरेशन और मिनिस्ट्री के साथ हम विजिट कर सकते हैं, इसमें काम हो सकता है सर। क्योंकि बड़ी क्रेडिटेबल कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल्स बना रही हैं। एक तो सर ये है यहाँ के, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, जीएसके है, इंग्लैंड से है। यहाँ का मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का ये भी रूल है कि जो प्रिंसिपल कंपनी है यहाँ पे आइटम वहीं से आएगी। लाइक जीएसके का प्लांट तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पे जो आइटम आएंगे वो प्रिंसिपल कंपनी से आएंगी। प्रिंसिपल कंपनी वो ब्रांडेड कंपनीज के लिए हैं, लेकिन जो जेनरिक में बनाते हैं लोकल, उसके लिए तो ये रूल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जेनरिक्स बहुत अच्छे कंपनीज हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज है एक्चुअली ओरिजिनली, तो ब्रांडेड की दे आर इन ओमान राइट नाउ दोस कंपनीज। सर यहाँ पे ब्रांडेड चीजें जो होती हैं वो स्पेशली उसी से आती हैं। जीएसके का होगा वो जीएसके से आएगा, सरले का सरले से ही आएगा, फाइजर का फाइजर से। नॉन ब्रांडेड जेनरिक फील्ड में क्या स्कोप है? सर यहाँ पे मान के 2 कंपनी, एनपीआई है, नेशनल फार्मास्यूटिकल जो है इंडस्ट्री, ये रुसेल में है, और एक है सलाला में जैनिका ना, क्या नाम है, जाइनोवा, सॉरी जाइनोवा कंपनी जो है ना वो सलाला में है। एक तीसरी है वो यहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रही है, उनकी प्रोडक्शन अपनी नहीं है, वो सिंपली पैकिंग कर रही है। तो ये एक ह्यूज मार्केट है। आपको अगेन पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स में असगर साहब is a practitioner for the past 15 years. So get in touch with Asghar Saab. Just as people here are specialized in their own fields, you should get in touch with them, have a long meeting with them. Yes, sir. I'm ready to attend. मैं क्या ऐड करता हूँ कि यहाँ पे जो भी कंपनी आती है तो उसको यहाँ पे लोकल चाहिए कंपनी जो उसके प्रोडक्ट रजिस्टर करवाए मिनिस्ट्री के साथ, और फिर उनको उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करे, मार्केटिंग करे और मार्केट में लेके जाए। क्योंकि हमारी कंपनीज अगर प्रोडक्ट्स लेके आती हैं तो वो खुद जाके मार्केट में तो उसको फिर सेल नहीं करा सकते, तो लोकल पार्टनर उनके लिए फार्मा में ज़रूरी है। फाइन, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, एक सेकेंड, लेटर ऑन। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शेख अब्दुल रहमान मग्गू है। मैं मिनरल ग्राइंड, मेरी कंपनी है एएन इंडस्ट्रीज, मिनरल ग्राइंडिंग और मिनरल ब्रांडिंग की कंपनी है आपकी? मिनरल ग्राइंडिंग एंड बेनिफिकेशन। कहाँ बेस्ड है आप? हम जिस यूएई और ओमान भी थोड़ा बहुत हमारा बिजनेस। थैंक यू। आपका क्वेश्चन क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मिनरल्स की क्या मार्केट, मतलब मिनरल अगर एक्सप्लोरेशन का और अगर मटेरियल चाहिए हो लाइक क्रोमाइट, उसका क्या तरीका है, और यहाँ बेनिफिकेशन वगैरह हो रही है, ये क्या स्कोप है यहाँ पे मिनरल बेनिफिकेशन वगैरह में? सवाल ये है कि वो मिनरल्स में कुछ करना चाहते हैं, पहले 2-3 चीजें क्या करेंगे? उसकी सबसे आप पहले मिनरल की यहाँ पे बकायदा पूरी मिनिस्ट्री। ये एक सेकंड कमर, बेटे ये बर्तन रखो और यहाँ से गायब हो जाओ, ये चाय देने की कोई जगह नहीं है। चले। हाँ जी। मिनरल्स के हवाले से यहाँ पे पूरी एक वजारत उन्होंने कायम कर रखी है। आप उसमें जाएंगे और आप उनसे पूछेंगे कि मैं जो रिलेटेड आप माइनिंग पूछ रहे हैं
वो करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड आपके पास क्या फिजिबिलिटी रेडी है, वो खुद आपको बताएंगे और उसके हवाले से वो आप कौन सा ऑफिस है कमर ये? मिनरल्स के रिलेटेड सर ऑफिस, मिनरल्स एंड एनर्जी के नाम से मिनरल्स एंड मेटलर्जी का ऑफिस है जो आपको बताएगा कि आप जिस मिनरल की बात कर रहे हैं उसका ओमान में क्या स्कोप है। और उनके पास बहुत सारी फिजिबिलिटीज रेडी भी हैं कि जैसे कुछ एरियाज उन्होंने एलोकेट किए हुए हैं, उसकी स्टडी उन्होंने की हुई है कि यहाँ पे क्रोमाइट है, यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं वो आपको मैंगनीज है, तो वो आप उनसे स्टडी लेके उस पे आप किस पे काम करना चाहेंगे ये आपने अपनी। मैं तो बेनिफिकेशन के मतलब जैसे क्रोमाइट है तो उसकी बेनिफिकेशन के, अगर लो लेवल का क्रोमाइट है तो उसको हम बेनिफिकेट करके उसके अपग्रेडेशन करेंगे। पूरी स्टडी है सर यहाँ पे क्रोम के हवाले से ओमान क्रोमाइट जो है बहुत बड़ा ये उनका सेटअप है। आप इंपोर्ट करने के मुतालिक सोच रहे हैं या वेरिफिकेशन के, आप क्या सोच रहे हैं? लोकल बिजनेस के हवाले से कि यहाँ पे अगर बेनिफिकेशन की जाए तो उसका स्कोप है या तो उसका आंसर वो दे दिया उन्होंने, यू विल हैव टू गो टू द ऑफिस। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्रोमाइट से भी आप रब्ता कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे जानना है कि रियल एस्टेट का स्कोप क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के टर्म से? फयाज साहब, रियल एस्टेट वो पाकिस्तान से पैसा ला के यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या करें? देखिए, रियल एस्टेट के बारे में यह है कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर हैं। द सिचुएशन के विच सेक्टर यू वांट टू स्पेंड in terms of freehold investment and leasing for 90 years. Freehold investment, we have a limited places here and they are bit away from the city. So if you're going to consider that area, then you have to start a multi-story building and then you can sell the apartment. But even then, that foreign investor is not allowed to do any kind of real estate in Oman, except you have to be one Omani local partner with you. If I make this investment through my company, will that be okay? If it's investment from your company, that the building or that the premises we are going to be built, that can be used only for your purpose, for your internal offices or your residential of your staff. You are not allowed to sell any kind of commercial activities unless you are not involved in the local sponsor with you. Okay, thank you. Does that answer your question, sir? Yeah, I understand. If you can have another leading question, please ask. No, that's all. I was just wanted to know overall. I can speak to you later. Please do. These people have spent decades in this field. Next question, please. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबारक अली मिसबा है। हम ओमान में कुछ ला नहीं रहे बल्कि ओमान से लेके जा रहे हैं। रॉ स्किन जो होती हैं, काउ हाइड्स, माइस की, गनम की, यानी बकरी और शीप की, ये यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। ये हाइट्स की बात कर रहे हैं जी, रॉ हाइट्स की? हाँ सर, रॉ हाइट्स जी हाँ। हाँ। लेकिन अब जो सेकंड मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हैं, ई मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आप क्या बताते हैं कि स्कोप है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में? जी सर। डिजिटल मार्केटिंग ऑफ व्हाट, किस चीज़ की? ई कॉमर्स और ऑल ओवर जो भी डिजिटल मार्केट में आता है, वेबसाइट्स हैं, दिगर हैं, बड़ी कंपनीज को सर्व करना है। देखिए, अगर तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट लेदर प्रोडक्ट है कोई, जी तो वो ये मार्केट तो बड़ी छोटी है उसकी, क्योंकि यहाँ सीजनल जो है अगर आप देखें कम है जी, और करना है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं और आप उसकी ऑफसेट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लेदर प्रोडक्ट में हम वन टू ऑल और प्रोडक्ट गुड्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने मार्केट अच्छी नहीं पाई, इसलिए गुड्स में कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन यहाँ से हम खालें लेकर जा रहे हैं, रॉ हाइड्स यहाँ से हम गुज़श्ता 10 साल से इंपोर्ट कर रहे हैं। सर, आई वांटेड टू ऐड ऑन दिस। I'll just give you the chance, just a second. अतीक, आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी है यहाँ? आप काइंडली ये जो डेलीगेट्स ऊपर बैठे हैं, किसी से जल्दी से इनके नाम, इनका सेक्टर और इनके व्हाट्सएप नंबर्स टाइप करवा लें। नहीं, फेसबुक पे ना लगाएं। आई नीड प्रिंट आउट्स, आई नीड 50-60 प्रिंट आउट्स, मैंने हाथ में देने हैं। लीव फेसबुक, किसी से टाइप करवा लें इनके नाम। अगर हम गुड्स को यहाँ लाएं जी तो क्या आपका ख्याल है? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर तो देखें आप उसकी फिनिश प्रोडक्ट ला रहे हैं जी, तो जैसे ही विंटर सीजन आता है तो लोग यहाँ से जिन्होंने बाहर जाना है तो वो उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट एरिया कौन सा रहेगा? मस्कत का? मस्कत सिटी है, मस्कत में आप कर सकते हैं ये। ठीक। और डिजिटल मार्केटिंग को या मुतारिफ कराएं तो वो भी आप तो बिल्कुल हो सकती है जी। तो फिर इसके लिए आपके साथ मुझे जी बिल्कुल। थैंक यू जी। मेरी एक अपनी कंपनी है, वो यूएस में इस वक्त काम कर रही है,
wool and cool We के नाम also से। affiliated with US and UK. तो I'll give you the details. Thank you very much. शुक्रिया। एक Sir, सेकंड, let him answer. Then I I'll get. just wanted to ask, excuse me, जोर से बोलना पड़ेगा। sir, I wanted to ask you कि आपकी टेंडरी है वहाँ पे या आप किस तरह से कर रहे हैं? यहाँ से pricing आप कैसे करते हैं? यार माइक तो ना ले लिया करो ना 1 मिनट में यार। गिव हिम द माइक। माइक इससे झपटते हो जैसे कि बोटी हो किसी। अस्सलाम वालेकुम जी। टेनरी हमारी जॉर्डन में थी। अच्छा। कोरोना के बाद बंद कर दी, उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल, और अब आउटसोर्स कर रहे हैं सारा। और जितने भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 600-700 ट्रेंसेस काम कर रही हैं, उनमें से 25 के साथ हम काम कर रहे हैं। राइट नाउ आप जो यहाँ के हाइट्स वो कहाँ से परचेज कर रहे हैं? यहाँ सोहार से ज़्यादा ले रहे हैं। ओके। और कुछ सलाला से। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज एन एंटिटी बाय द नेम ऑफ निताज एंड बशायर। ये सब्सिडरी Could you pronounce it slowly and loudly? ओके। हिदायत? देयर इज एन एंटिटी बाय द नेम ऑफ निताज। जी जी। एंड उनकी सब्सिडरी है बशायर। इट्स द लार्जेस्ट स्लॉटर हाउस ओवर हियर। जी। सो आप उनसे बल्क बाइंग की डील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक डील करवाई थी फॉर द लाहौर, वन ऑफ द लाहौर काउंटर पार्ट्स इन टेंडरी। दे ऑल्सो वांटेड टू सेट अ टेंडरी ओवर हेयर। ओके। और इवन एक टेंडरी ऑन सेल है इन सलाला इवन। ओके। सो उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको हाइट्स उतनी नहीं मिल रही थी जितनी रिक्वायर्ड थी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग सेटिंग अ टेंडरी ओवर हेयर, देयर इज एन ऑप्शन regarding the finished goods scenario. I would second sir's thought, but I would consider this क्योंकि हमने recently explore किया है। जी। आप इसको as a GCC market लेके जाएं, rather than finished good यहाँ पे लाने से बेहतर है कि आप इसको किसी free zone में register करवाएं। जी जी। और free zone के जरिए export और FTAs के through लेके जाएं। This is the methodology has been used and explored by various neighbor counterparts as well. जी। So अगर आप finished goods के through आना चाह रहे हैं तो do go to the free zones and then explore further. For the heights and things, if you want any means connection, I can connect with you. ऑलरेडी हम सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं। दुबई का एक्सपीरियंस बुरा है, वो हमने बंद कर दिया। यूरोप को हम कर रहे हैं, स्कॉटलैंड या कर रहे हैं, अमेरिका। सर आप यूरोप को कर रहे हैं ना? यूरोप का यहाँ पे 25 years का FTA है। आपको 0 इनकम टैक्स पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर सेटअप करते हैं एक रीसेलर रीपैकेजिंग, तो यू कैन हैव ड्यूटी फ्री एक्सेस टू मार्केट। ओके ओके। सो बाकी आपसे भी मैं बात करता हूँ। अभी आपको लिस्ट भी देंगे। मे आई नो फ्रॉम द एम्बेसी के टाइप कौन कर रहा है? हफ्सा एम्बेसी में से कौन टाइप कर रहा है ये लिस्ट? हाँ, अतीक खुद कर रहे हैं यार। गेट इट टाइप इज समबडी एल्स। Zeb, you come to me इधर आओ। Okay, next question please. Assalamu alaikum. I'm Dr. Khalid, professor in micro. को जोर से बोलना पड़ेगा। English. In English, please. Okay, I'm Dr. Khalid from Gaza, Palestine. I have my own factory in micro and macro algae production. Cultivation. Algae. He's but the biological algae production. We have our own factory in Oman, and we are the single one in Arab countries who's producing this and cultivating the algae. We have our feed factory. We are looking to open a cooperation between Pakistan and between Oman, and to have an academy in algae cultivation and production and isolation and processing. Where? In Pakistan and between Pakistan and Oman. Whatever, the place is not that much important. In Oman, in Pakistan, it's not important. First of all, being Muslims and being humans, I salute your land for putting up the bravest possible fight in the world. Leaving everything else, I salute you as a human and as a brave nation. Right? So the next question is regarding LGs. He's from Gaza, Gaza Strip. Let me continue. There is a huge now big question about bank seeds. To open a bank seed for algae and for food security programs in Oman. I think no one have it in Arab countries, and maybe we can have it in Oman and the same one in Pakistan. And it's for called, algae and did you understand the question? seeds. Who would like to respond to this? Yes, Mike, please.
It's about LG. Tell us what he's asking at. Sir, can you explain, you are utilizing the LG for what purposes? It's the renewable energy CO2? No, this is fake. This is fake ideas. These are the fake LGs. No, fake idea about the CO2 consumption. I'm talking about food security program and to extract from algae our food, our feed, our cosmetics, our pharmaceutical. This is plant nutrition. Yeah, Plant I got nutrition. it. Actually, sir, there are two focuses. That's why I asked. See, in Pakistan, there is an entity that is doing the similar thing, and it's at industrial level as well. So I can connect you in Pakistan. Over here, if you wanted to present your case, there are two bodies that are involved in it. One is when you will go to Oman Investment Authority, there is a subsidiary, there is a group of food security who looks after the investment side. And then again, their other subsidiaries are involved from the government sector, especially Netaj and Nakhel. These are the entities who look after these niche segments. So if you wanted to have like any idea about the financing scenario, how they can support you, and as well as if you want any sort of like land scenario. He's thinking about an agreement between Pakistan and Oman. Forget them, please, forget them. I already visited them. I know them very well. They are not interesting. I'm talking about how to secure ourselves. I think the Third World War is coming. I think we can secure our countries with the food security. We have to have our own seeds, not importing from Holland or from Israel. Totally agree. There is a huge need in our countries. We can have our own seeds from our local, and maybe we can have from Pakistan also. Sure. This will secure us. The second one, to have processing these products, like isolation from the sea, from the rivers, from whatever, from where, and to cultivate it and to process it and become powder. This powder can we use for human consumption, for feed consumption, for pharmaceutical. Indeed, sir, I know. Right, thank you, thank you. The German company, they are extracting some pigments and anti-cancer medicine. They are selling for 11 million 1 kg. Yes. $11 million 1 kg. They are extracting from China. They are importing from China and extracting. We can do that. I have knowledge to do everything in this field. I am a professor in this field. I can do everything. I can extract the oil. I can do the anti-cancer medicine. I can do the capsules, soft gels, feed. I have. Excellency, have you met the pharmaceutical stalls here? This is the end process. The end process. After extracting the raw material from algae, we can give to them to process it as for soft gel. But the first thing, I have 12 types of fertilizers. All are organic. I have my own feed, my animal factory feed. I'm supplying the product to animal factory feed. I have my own 2 products, which is the highest protein in the world, vegetarian, 66.4% of protein. And it is all natural and very cheap cost. Excellency, that's a specific area. Sir, I respect your experience and the achievements and the type of products you are raising up. What I can facilitate, you need any tipping point or a connection point in Pakistan in terms of the food security or the pharma, that I can connect with you. We are already working, especially in the Sindh government and the Punjab side. And in terms of, I don't know why you are saying you had a bad experience over here. I can take up your initiative. Let me know what was the issue. If it is recoverable, we will recover it. I got from the Ministry of Agriculture, I got from him 84,000 square meter to build my Excellency, farm that's here. fine. That's specific. That you can discuss in your... You can get I will catch you. Next question, please. Zor se. Assalamu alaikum. I am Izhar from Pakistan. We export salt handicrafts. मेरा question ये है Salt and handicrafts, okay. Yeah, edible salt and salt handicrafts.
मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पर कंपनी ओपन करते हैं तो हाउ मच डिफिकल्ट इट इज़ टू हैंडल लॉजिस्टिक्स ओवर हेयर एंड क्लियरेंस इश्यूज। जाहिर है अगर हम पाकिस्तान तो हमें वो क्लियर भी कराना होगा पोर्ट से और फिर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को भी हमें देखना होगा, तो वो कितना मुश्किल है यहाँ पर, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। और अगेन क्वेश्चन ये है कि इंपोर्ट कंपनी ओपन करने के लिए यहाँ पर अगेन हमें कोई लोकल पार्टनर चाहिए होगा या हम सोलली कर सकते हैं? Very good question. Yes, you can establish your company with your 100% own ownership. No required a local partner here. And the other things regarding the logistic, as you are asking, it's a very easy system here. You have to hire a public relation officer, that's called a PRO, money, and he can go, even you can give some companies are here, those who can handling this kind of things. And it is so easy and very easy. And there is not even a one outlet here in Oman from the things coming from Pakistan. So if you go through this, it will be more advantage in future in success. Thank you. Always go through the Omani local partner and have a local PRO. These are, you know, मुझे 1 साल लगा यहाँ, 1-1.25 साल अंडरस्टैंड करने में कि ओमान में PRO का क्या मतलब है। हम पाकिस्तान में समझते हैं पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को कहते हैं, ओमान में PRO इज द पर्सन हु इज द योर लिंक विद द ओमान गवर्नमेंट। The most important person in a company for a foreigner, he's called a PRO. हमारा भी यहाँ PRO है, वो half asleep है, लेकिन PROs are very important. PROs are, Fayaz, thank you. That was such a quick and beautiful answer. Next question, please. आपको जी दोबारा चांस दिया जाता है, तीसरी दफा भी दिया जाएगा, लेकिन बीच में 1-2 मर्दों को पूछना पड़ेगा। पूछें। जी बड़ा बेसिक। आप भूल गई हैं, माइक बंद है और आप जोर से बोल रहे हैं। हफ्सा आगे माइक ठीक कर दो, कोई नहीं कुछ कहेगा। अगर जी हमारा प्रोडक्ट कोई यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर उठाता है, पाकिस्तान में हमारी कंपनी है, तो क्या उस केस में भी हमें यहाँ कंपनी कोई रजिस्टर करवानी पड़ेगी? मैडम आपका सवाल ये है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को, हाँ जी। तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर कराने की जरूरत है या नहीं? हाँ जी। नहीं, उस सूरत में आपको जरूरत नहीं है। वो लोकल कंपनी विल एक्ट एज योर रिप्रेजेंटेटिव। और वही लोकल कंपनी विल आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर द मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट दे विल हैंडल एवरीथिंग। इमरान, वैसे तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर लो ना 3-4 दिन, बिल्कुल ठीक हो गए। आधा घंटा लगा है, फालतू बातें करना खत्म हो। शुक्र है खुदा का। रियाज साहब, ले तुम्हारे बॉस तो उधर चले गए, उनका फोन ही नहीं रुकता। हाँ जी। और दूसरा बड़ा अच्छा उन्होंने, शाह साहब कम्युनिटी के हेड भी हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर किया आपको कि यहाँ पे क्लियरेंस जो है ना इज़ वेरी इजी प्रोसेस। ये इज़ वेरी डिफरेंट देन अदर। इस जीसीसी के अंदर बड़ा क्लियर, क्योंकि बिकॉज लॉ अप्लाई करता है यहाँ पे हर चीज़ में। तो स्टैंडर्ड ड्यूटीज़ हैं, 5% कस्टम ड्यूटी है, वो स्टैंडर्ड ड्यूटी है। और जो क्लियरेंस कंपनीज हैं यहाँ पे और PRO जाके वहाँ पे पोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियरेंस जो है यहाँ पे बिल्कुल कोई इशू नहीं है। दिस इज वेरी इजी, अल्हम्दुलिल्लाह। वलीद वांट्स टू से समथिंग, शॉर्ट आंसर करना वरना तुम्हें भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। हाँ, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि वो यहाँ की FDA से भी अप्रूव्ड हो, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपका पार्टनर यहाँ का लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो ये आपको कहेगा कि आप इसकी सारी हमें जो है लीगैलिटीज क्लियर करके दें, तो ये मेक श्योर कीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके, ये ना हो कि आपका किससे क्लियर्ड हो आप कह रहे हैं? between them and their local partner here who will be the distributor. She will need a local partner in any case. No, she needs a local partner as a distributor. इनकी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जब पार्टनरशिप So what you're saying is कि इनको ये इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर जाली ना हो। इन्होंने ये इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो कहाँ से इंश्योर करेंगे? ये तो जब इनकी डील होगी, तो मैं इसलिए इनको अभी से एक हेड्स अप दे रहा हूँ कि ये मेक श्योर करें, क्योंकि अगर आप FMCG प्रोडक्ट है आपका, तो आप लोकल FDA के जितने भी कंप्लायंसेस हैं वो आप मेक श्योर करें कि क्या वो आप क्या आपके खुद ही क्लियर कर देंगे और वो डॉक्यूमेंट है, या आपका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर। ये चीज़ पे फिर आपकी जो इम्पोर्ट होगी यहाँ पे वो ज़रा इजीली रिलीज हो जाती है, ज़रा क्लियरेंस उसकी इजी हो जाती है। आप माइक लें दोबारा। आपका जवाब जो है वो
इकराम साहब ने दे दी है, ये आपको जस्ट सजेशन दे रहे हैं। आपसे पहले कोई और क्वेश्चन है या सर आपको दोबारा चांस देता हूँ, माइक इधर दे दें। हाँ प्लीज पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है, मेरा ताल्लुक मेट्रो मिलन अगरबत्ती से है, पाकिस्तान से। पेट्रोलियम? मेट्रो मिलन अगरबत्ती से। मेट्रो मिलन अगरबत्ती, जी बिल्कुल। हमारा जो बिजनेस डायनेमिक है वो ऐसा है कि हम मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ। हमारा दुनिया के 50 मुल्कों में एक्सपोर्ट है और हमारा दुनिया में कहीं भी ऑफिस नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। और हमारा जो है वो जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होती है और इम्पोर्टर्स जो हैं, जो हमारी जिस पूरी दुनिया में जहाँ भी इम्पोर्टर्स हैं, उनका काम होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स वो करते हैं। सर आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि ओमान के अंदर मेरी कपल ऑफ इम्पोर्टर्स से मुलाकात हुई है एंड दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स। हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं आर बेटर देन देम और मैंने प्राइस रेंज को भी देखा है, वी आर लोअर देन देम। तो आप में से कोई मुझे किसी भी पाकिस्तानी इम्पोर्टर अंडरस्टैंड करें हाउ टू ब्रेक इनटू अ मार्केट दैट हैज अ बायस अगेंस्ट दिस कंट्री। सादा सा सवाल है, पहला पत्थर कैसे मारोगे? किसने जवाब देना है? हाथ ऊपर करो, माइक पकड़ो और जवाब दो। पहला पत्थर कैसे मारोगे? आपके सवाल के अंदर ही जवाब था कि आप ऑलरेडी 50+ कंट्रीज में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जितनी कंपनियों के साथ आपकी मीटिंग हुई है, वो इनकार कर रहे हैं। वो आपके साथ काम करने पे तैयार नहीं है। दे आर इंडियन इम्पोर्टर्स। देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट टू वर्क एंड फाइट योर वे आउट बिजनेस। देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट टू वर्क and fight your way up. There is no shortcut to it. Next question. अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है, मैं मस्कत फार्मेसी से हूँ। वो भाई का क्वेश्चन था तो सर उसके बारे में ये है कि जो आपको जोर से बोलना पड़ेगा। मस्कत फार्मेसी तो हर कोने में और इतने बड़े बड़े उसके बिल बोर्ड्स हैं। बोल आप इतना आहिस्ता रहे हैं। एक्चुअली सर सर्जिकल आइटम्स के लिए इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फार्मा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कोई भी कंपनी यहाँ पे है नहीं। तो मेरा इन सब से क्वेश्चन है कि आप क्या किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं एज अ लोकल कंपनीज़ जो यहाँ पे आई हुई हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कंपटीटर्स हैं मोस्टली इंडिया से हैं या बाकी नेबरिंग कंट्रीज से हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो सिंपली नो बोल देते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। क्या वो किसी खास वजह से नो बोलते हैं सर, या ट्रेंड है कि उन्होंने पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल्स को नहीं? दोनों चीज़ें हैं, इसमें हमारी क्वालिटी का भी है सर हमारे पास, क्योंकि कोई भी आइटम यहाँ पे लाने से पहले उसको ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और वो जैसे ही जाता है वो उनके जो देखते हैं फिर वो मतलब ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड वैसे बड़ी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके लिए फैसिलिटेशन चाहिए हमारे यहाँ और पूरा वो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पास में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर द क्वेश्चन इज फार्मास्यूटिकल की पाकिस्तानी कंपनी, मेड इन पाकिस्तान कंपनी इसलिए नहीं आ सकती कि ओमान मेडिकल एंड स्पेशलिटी बोर्ड में ट्रेंड है कि उस पर यस नहीं करता? ये सवाल है सर। ऐसा है कि फार्मास्यूटिकल में पाकिस्तान से जो भी कंपनी यहाँ पे आएगी, एक तो एटलीस्ट वो जीसीसी किसी एक कंट्री में रजिस्टर्ड होनी चाहिए पहले ये है। जो कंपनी फार्मास्यूटिकल्स की आएगी इट शुड बी रजिस्टर्ड इन अनदर। इसकी क्या वजह सर? सर ये मिनिस्ट्री को तकरीबन 4-5 साल पहले से जो है ना बाय लॉ उन्होंने अपने ये किए हुए, ये बाय लॉज हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक सिस्टर जीसीसी कंट्री में पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। आगे सर इसमें जैसे भाई ने कहा ना, ये भी हमारी क्वालिटी सर्टन चीज़ें आ जाती हैं इसमें। किसी ने भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या वहाँ से फोकस नहीं किया। हमारे कंट्री के ज़्यादा श्रीलंकन है या अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ सप्लाई ज़्यादा जा रही थी, जीसीसी में ना होने के बराबर थी, और टिल नो एज इट इज़ ये सर। असर तो अगर आपने स्टोन वॉल पे या इस पे पत्थर मारना हो तो क्या तरीका है? एम्बेसी क्या करे, हुकूमत क्या करे, हम लोग क्या करें फार्मास्यूटिकल्स को लाने के लिए? नो डाउट सर, इसमें वर्क कर सकते हैं विद एम्बेसी कोलैबोरेशन और मिनिस्ट्री के साथ हम विजिट कर सकते हैं, इसमें काम हो सकता है सर। क्योंकि बड़ी क्रेडिटेबल कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल्स बना रही हैं। एक तो सर ये है यहाँ के, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, जीएसके है,
इंग्लैंड से है। यहाँ का मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का ये भी रूल है कि जो प्रिंसिपल कंपनी है यहाँ पे आइटम वहीं से आएगी। लाइक जीएसके का प्लांट तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पे जो आइटम्स आएंगे वो प्रिंसिपल कंपनी से आएंगी। प्रिंसिपल कंपनी वो ब्रांडेड कंपनीज के लिए हैं, लेकिन जो जेनरिक में बनाते हैं लोकल, उसके लिए तो ये रूल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जेनरिक्स बहुत अच्छे कंपनीज हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज है एक्चुअली ओरिजिनली, तो ब्रांडेड की दे आर इन ओमान राइट नाउ दोस कंपनीज। सर यहाँ पे ब्रांडेड चीजें जो होती हैं वो स्पेशली उसी से आती हैं। जीएसके का होगा वो जीएसके से आएगा, सरले का सरले से ही आएगा, फाइजर का फाइजर से। नॉन ब्रांडेड जेनेरिक फील्ड में क्या स्कोप है सर? यहाँ पे मान के दो कंपनी एनपीआई है, नेशनल फार्मास्यूटिकल जो है इंडस्ट्री, ये रसेल में है, और एक है सलाला में जैनिका ना, क्या नाम है, जाइनोवा, सॉरी जाइनोवा कंपनी जो है ना वो सलाला में है। एक तीसरी है वो यहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रही है, उनकी प्रोडक्शन अपनी नहीं है, वो सिंपली पैकिंग कर रही है। तो ये एक ह्यूज मार्केट है। आपको अगेन पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स में असगर साहब is a practitioner for the past 15 years. So get in touch with Asghar Saab. Just as people here are specialized in their own fields, you should get in touch with him, have a long meeting with him. Yes, sir. I'm ready to attend. मैं क्या ऐड करता हूँ कि यहाँ पे जो भी कंपनी आती है तो उसको यहाँ पे लोकल चाहिए कंपनी जो उसके प्रोडक्ट रजिस्टर करवाए मिनिस्ट्री के साथ, और फिर उनको उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करे, मार्केटिंग करे और मार्केट में लेके जाए। क्योंकि हमारी कंपनीज अगर प्रोडक्ट्स लेके आती हैं तो वो खुद जाके मार्केट में तो उसको फिर सेल नहीं करा सकते, तो लोकल पार्टनर उनके लिए फार्मा में ज़रूरी है। Fine, let's move on from pharmacology. Next question please. Yes. एक सेकंड, later on. अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शेख अब्दुल रहमान मग्गू है। मैं मिनरल ग्राइंड, मेरी कंपनी है एएन इंडस्ट्रीज, मिनरल ग्राइंडिंग और मिनरल ब्रांडिंग की कंपनी है आपकी? मिनरल ग्राइंडिंग एंड बेनिफिकेशन। कहाँ बेस्ड है आप? हम जी यूएई और ओमान भी थोड़ा बहुत हमारा बिजनेस। थैंक यू। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मिनरल्स की क्या मार्केट, मतलब मिनरल अगर एक्सप्लोरेशन का और अगर मटेरियल चाहिए हो लाइक क्रोमाइट, उसका क्या तरीका है और यहाँ बेनिफिकेशन वगैरह हो रही है, या क्या स्कोप है यहाँ पे मिनरल बेनिफिकेशन वगैरह में? सवाल ये है कि वो मिनरल्स में कुछ करना चाहते हैं, पहले 2-3 चीजें क्या करेंगे उसकी सबसे आप पहले मिनरल की यहाँ पे बकायदा पूरी मिनिस्ट्री। ये एक सेकंड कमर बेटे, ये बर्तन रखो और यहाँ से गायब हो जाओ, ये चाय देने की कोई जगह नहीं है। चले। हाँ जी। मिनरल्स के हवाले से यहाँ पे पूरी एक वजारत उन्होंने कायम कर रखी है। आप उसमें जाएंगे और आप उनसे पूछेंगे कि मैं जो रिलेटेड आप माइनिंग पूछ रहे हैं वो करना चाहता हूँ, तो उसके रिलेटेड आपके पास क्या फिजिबिलिटी रेडी है, वो खुद आपको बताएंगे। और उसके हवाले से वो आप कौन सा ऑफिस है कमर? ये मिनरल्स के रिलेटेड सर ऑफिस, मिनरल्स एंड एनर्जी के नाम से मिनरल्स एंड मेटलर्जी का ऑफिस है, जो आपको बताएगा कि आप जिस मिनरल की बात कर रहे हैं उसका ओमान में क्या स्कोप है। और उनके पास बहुत सारी फिजिबिलिटीज रेडी भी हैं कि जैसे कुछ एरियाज उन्होंने एलोकेट किए हुए हैं, उसकी स्टडी उन्होंने की हुई है कि यहाँ पे क्रोमाइट है, यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे जो आप बात करें वो आपको मैंगनीज है, तो वो आप उनसे स्टडी लेके उस पे आप किस पे काम करना चाहेंगे ये आपने अपनी। मैं तो बेनिफिकेशन के मतलब जैसे क्रोमाइट है तो उसकी बेनिफिकेशन के, अगर लो लेवल का क्रोमाइट है तो उसको हम बेनिफिकेट करके उसके अपग्रेडेशन करेंगे। उनके पास पूरी स्टडी है सर यहाँ पे क्रोम के हवाले से। ओमान क्रोमाइट जो है बहुत बड़ा ये उनका सेटअप है। आप इंपोर्ट करने के मुतालिक सोच रहे हैं या वेरिफिकेशन के, आप क्या सोच रहे हैं? लोकल बिजनेस के हवाले से कि यहाँ पे अगर बेनिफिकेशन की जाए तो उसका स्कोप है या तो उसका आंसर वो दे दिया उन्होंने। यू विल हैव टू गो टू द ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्रोमाइट से भी आप रब्ता कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे जानना है कि रियल एस्टेट का स्कोप क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के टर्म से? फयाज साहब, रियल एस्टेट वो पाकिस्तान से पैसा ला के यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या करें? देखिए, रियल एस्टेट के बारे में यह है कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर हैं। द सिचुएशन के विच सेक्टर यू वांट टू स्पेंड in terms of freehold investment and leasing for 90 years. Freehold investment, we have a limited places here and they are bit away from the city. So if you're going to consider that area, then you have to start a multi-story building and then you can sell the apartment. But even then, that foreign investor is not allowed to do any kind of real estate in Oman, except you have to be one Omani local partner with you.
if I make this investment through my company, will that be okay? If it's investment from your company, that the building or that the premises we are going to be built, that can be used only for your purpose, for your internal offices or your residential of your staff. You are not allowed to sell any kind of commercial activities unless you are not involved in the local sponsor with you. Okay, thank you. Does that answer your question, sir? Yeah, I understand. If you can have another leading question, please ask. No, that's all. I was just wanted to know overall. I can speak to you later. Please do. These people have spent decades in this field. Next question, please. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबारक अली मिसबा है। हम ओमान में कुछ ला नहीं रहे बल्कि ओमान से लेके जा रहे हैं। रॉ स्किन जो होती हैं, काउ हाइड्स, माइस की, गनम की, यानी बकरी और शीप की, ये यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। ये हाइट्स की बात कर रहे हैं जी, रॉ हाइट्स की? हाँ सर, रॉ हाइड्स जी हाँ। हाँ। लेकिन अब जो सेकंड मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हैं, ई मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आप क्या बताते हैं कि स्कोप है यहाँ पर? डिजिटल मार्केटिंग में? जी सर। डिजिटल मार्केटिंग ऑफ व्हाट? किस चीज की? ई कॉमर्स और ऑल ओवर जो भी डिजिटल मार्केट में आता है, वेबसाइट्स हैं, दिगर हैं, बड़ी कंपनीज को सर्व करना है। देखिए, अगर तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट लेदर प्रोडक्ट है कोई, जी तो वो ये मार्केट तो बड़ी छोटी है उसकी, क्योंकि यहाँ सीजनल जो है अगर आप देखें कम है जी, और करना है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं और आप उसकी ऑफसेट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लेदर प्रोडक्ट में हम वन टू ऑल और प्रोडक्ट गुड्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने मार्केट अच्छी नहीं पाई, इसलिए गुड्स में कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन यहाँ से हम खालें लेकर जा रहे हैं, रॉ हाइड्स यहाँ से हम गुज़श्ता 10 साल से इंपोर्ट कर रहे हैं। सर, आई वांटेड टू ऐड ऑन दिस। I'll just give you the chance, just a second. अतीक, आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी है यहाँ? आप काइंडली ये जो डेलीगेट्स ऊपर बैठे हैं, किसी से जल्दी से इनके नाम, इनका सेक्टर और इनके व्हाट्सएप नंबर्स टाइप करवा लें। नहीं, फेसबुक पे ना लगाएं। आई नीड प्रिंट आउट्स, आई नीड 50-60 प्रिंट आउट्स, मैंने हाथ में देने। लीव फेसबुक, किसी से टाइप करवा लें इनके नाम। अगर हम गुड्स को यहाँ लाएं जी जी, तो क्या आपका ख्याल है? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर तो देखें आप उसकी फिनिश प्रोडक्ट ला रहे हैं जी जी, तो जैसे ही विंटर सीजन आता है तो लोग यहाँ से जिन्होंने बाहर जाना है तो वो उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट एरिया कौन सा रहेगा? मस्कत का? मस्कत सिटी है, मस्कत में आप कर सकते हैं ये। ठीक। और डिजिटल मार्केटिंग को या मुतारिफ कराएं तो वो भी आप तो बिल्कुल हो सकती है जी। तो फिर इसके लिए आपके साथ मुझे जी बिल्कुल थैंक यू जी। मेरी एक अपनी कंपनी है, वो यूएस में इस वक्त काम कर रही है, वूल एंड कूल के नाम से। आल्सो एफिलिएटेड विद यूएस एंड यूके। तो आई विल गिव यू द डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। एक सेकंड, लेट हिम आंसर, देन आई जस्ट वांटेड टू आस्क, एक्सक्यूज मी, जोर से बोलना पड़ेगा सर। आई वांटेड टू आस्क यू, क्या आपकी टेंडरी है वहाँ पे या आप किस तरह से कर रहे हैं? यहाँ से pricing आप कैसे करते हैं? यार माइक तो ना ले लिया करो ना 1 मिनट में यार। गिव हिम द माइक। माइक इससे झपटते हो जैसे कि बोटी हो किसी। अस्सलाम वालेकुम जी। टेंडरी हमारी जॉर्डन में थी, अच्छा, कोरोना के बाद बंद कर दी, उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल, और अब आउटसोर्स कर रहे हैं सारा। और जितने भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 600-700 ट्रेंसेस काम कर रही हैं, उनमें से 25 के साथ हम काम कर रहे हैं। राइट नाउ आप जो यहाँ के हाइट्स वो कहाँ से परचेज कर रहे हैं? यहाँ सोहार से ज़्यादा ले रहे हैं, ओके, और कुछ सलाला से। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज एन एंटिटी बाय द नेम ऑफ निताज एंड बशायर। ये सब्सिडरी could you pronounce it slowly and loudly? Okay. Hidayat? There is an entity by the name of Nitaj. जी जी। And उनकी सब्सिडरी है बशायर। It's the largest slaughterhouse over here. जी। So आप उनसे बल्क बाइंग की डील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक डील करवाई थी for the Lahore, one of the Lahore counterparts in Tannery. They also wanted to set a Tannery over here. Okay. और even एक Tannery on sell है in Salala even. Okay. So उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको हाइट्स उतनी नहीं मिल रही थी जितनी रिक्वायर्ड थी। So if you are interested in exploring setting a Tannery over here, there is an option. Regarding the finished goods scenario, I would second sir's thought, but I would consider this, क्योंकि हमने recently explore किया है जी। आप इसको as a GCC market लेके जाएं, rather than finished good यहाँ पे लाने से बेहतर है कि आप इसको किसी फ्री जोन में रजिस्टर करवाएं जी जी, और फ्री जोन के जरिए एक्सपोर्ट और FTAs के थ्रू लेके जाएं।
This is the methodology has been used and explored by various neighbor counterparts as well. जी So अगर आप finished goods के through आना चाह रहे हैं तो do go to the free zones and then explore further. For the hides and things, if you want any means connection, I can connect with you. ऑलरेडी हम सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं. दुबई का एक्सपीरियंस बुरा है, वो हमने बंद कर दिया. यूरोप को हम कर रहे हैं, स्कॉटलैंड या कर रहे हैं, अमेरिका. सर आप यूरोप को कर रहे हैं ना? यूरोप का यहाँ पे 25 इयर्स का FTA है. आपको जीरो इनकम टैक्स पड़ेगा यहाँ पे. यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा. आप यहाँ पे अगर सेटअप करते हैं एक रीसेलर रीपैकेजिंग, तो यू कैन हैव ड्यूटी फ्री एक्सेस टू मार्केट्स. ओके ओके. सो बाकी आपसे भी मैं बात करता हूँ. अभी आपको लिस्ट भी देंगे. मे आई नो फ्रॉम द एम्बेसी के टाइप कौन कर रहा है? हफ्सा एम्बेसी में से कौन टाइप कर रहा है ये लिस्ट? हाँ, अतीक खुद कर रहे हैं यार. गेट इट टाइप इज समबडी एल्स. जेब यू कम टू मी इधर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Assalamu alaikum. I'm Dr. Khalid, professor in micro. को जोर से बोलना पड़ेगा. English. In English, please. Okay. I'm Dr. Khalid from Gaza, Palestine. I have my own factory in micro and macro algae production. Cultivation. Algae. He's but the biological algae production. We have our own factory in Oman, and we are the single one in Arab countries who's producing this and cultivating the algae. We have our feed factory. We are looking to open a cooperation between Pakistan and between Oman, and to have an academy in algae cultivation and production and isolation and processing. Where? In Pakistan and between Pakistan and Oman. Whatever, the place is not that much important. In Oman, in Pakistan, it's not important. First of all, being Muslims and being humans, I salute your land for putting up the bravest possible fight in the world. Leaving everything else, I salute you as a human and as a brave nation. Right? So the next question is regarding LGs. He's from Gaza, Gaza Strip. Let me to continue. There is a huge now big question about bank seeds. To open a bank seed for algae and for food security programs in Oman. I think no one have it in Arab countries, and maybe we can have it in Oman and the same one in Pakistan. And it's called, algae and did you understand the question? seeds. Who would like to respond to this? Yes, Mike, please. It's about algae. Tell us what he's asking at. Sir, can you explain, you are utilizing the algae for what purposes? It's the renewable energy CO2? No, this is fake. This is fake ideas. These are the fake algae. No, fake idea about the CO2 consumption. I'm talking about food security program and to extract from algae our food, our feed, our cosmetics, our pharmaceutical. This is plant nutrition. Plant nutrition. Actually, sir, there are two focuses. That's why I asked. See, in Pakistan, there is an entity that is doing the similar thing, and it's at industrial level as well. So I can connect you in Pakistan. Over here, if you wanted to present your case, there are two bodies that are involved in it. One is when you will go to Oman Investment Authority, there is a subsidiary, there is a group of food security who looks after the investment side. And then again, there other subsidiaries are involved from the government sector, especially Netaj and Nakhel. These are the entities who look after these niche segments. So if you wanted to have any idea about the financing scenario, how they can support you, and as well as if you want any sort of land scenario. He's thinking about an agreement between Pakistan and Oman. Forget them, please, forget them. I already visited them. I know them very well. They are not interesting. I'm talking about how to secure ourselves. I think the Third World War is coming. I think we can secure our countries with the food security. We have to have our own seeds, not importing from Holland or from Israel. Totally agree. There is a huge
need in our countries. We can have our own seeds from our local, and maybe we can have from Pakistan also. Sure. This is will secure us. The second one, to have processing these products, like isolation from the sea, from the rivers, from whatever, from where, and to cultivate it and to process it and become powder. This powder can we use for human consumption, for feed consumption, for pharmaceutical. Indeed, sir, I know. You know, Right, thank you, thank you. the German company, they are extracting some pigments and anti-cancer medicine. They are selling for 11 million 1 kg. Yes. $11 million 1 kg. They are extracting from the China. They are importing from China and extracting. We can do that. I have knowledge to do everything in this field. I am a professor in this field. I can do everything. I can extract the oil. I can do the anti-cancer medicine. I can do the capsules, soft gels, feed. I have. Excellency, have you met the pharmaceutical stalls here? This is the end process. The end process. After extracting the raw material from algae, we can give to them to process it as for soft gel. But the first thing, I have 12 types of fertilizers. All are organic. I have my own feed, my animal factory feed. I'm supplying the product to animal factory feed. I have my own 2 products, which is the highest protein in the world, vegetarian, 66.4% of protein. And it is all natural and very cheap cost. Excellency, that's a specific area. Sir, I respect your experience and the achievements and the type of products you are basing up. What I can facilitate, you need any tipping point or a connection point in Pakistan in terms of the food security or the pharma, that I can connect with you. We are already working, especially in the Sindh government and the Punjab side. And in terms of, I don't know why you are saying you had a bad experience over here. I can take up your initiative. Let me know what was the issue. If it is recoverable, we will recover it. I got from the Ministry of Agriculture, I got from him 84,000 square meter to build my Excellency, farm that's here. fine. That's specific. That you can discuss in your... Sure. You can get I will catch you. Next question, please. Zor se. Assalamu alaikum. I am Izhar from Pakistan. We export salt handicrafts. मेरा question ये है Salt and handicrafts, okay. Yeah, edible salt and salt handicrafts. मेरा question ये है कि अगर हम यहाँ पर कंपनी ओपन करते हैं तो how much difficult it is to handle logistics over here and clearance issues. जाहिर है अगर हम पाकिस्तान तो हमें वो क्लियर भी कराना होगा पोर्ट से और फिर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को भी हमें देखना होगा, तो वो कितना मुश्किल है यहाँ पर, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है. और अगेन क्वेश्चन ये है कि इंपोर्ट कंपनी ओपन करने के लिए यहाँ पर अगेन हमें कोई लोकल पार्टनर चाहिए होगा या हम सोलली कर सकते हैं. Very good question. Yes, you can establish your company with your 100% own ownership. No required local partner here. And the other things regarding the logistic, as you are asking, it's a very easy system here. You have to hire a public relation officer, that's called a PRO, money, and he can go, even you can give some companies are here, those who can handling this kind of things. And it is so easy and very easy. And there is not even one outlet here in Oman from the things coming from Pakistan. So if you go through this, it will be more advantage in future in this. Thank you. Always go through the Omani local partner and have a local PRO. These are, you know, मुझे 1 साल लगा यहाँ, 1.25 साल अंडरस्टैंड करने में कि ओमान में PRO का क्या मतलब है. हम पाकिस्तान में समझते हैं पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को कहते हैं. ओमान में PRO is the person who is your link with the Oman government. The most important person in a company for a foreigner, he's called a PRO. हमारा भी यहाँ PRO है, वो half asleep है, लेकिन PROs are very important. PROs are, Fayaz, thank you. That was such a quick and beautiful answer. Next question, please. आपको जी दोबारा चांस दिया जाता है, तीसरी दफा भी दिया जाएगा, लेकिन बीच में 1-2 मर्दों को पूछना पड़ेगा.
पूछें पूछें पूछें। जी बड़ा बेसिक। आप भूल गई हैं माइक बंद है और आप जोर से बोल रहे हैं। हफ्सा आगे आगे माइक ठीक कर दो, कोई नहीं कुछ कहेगा। अगर जी हमारा प्रोडक्ट कोई यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर उठाता है, पाकिस्तान में हमारी कंपनी है, तो क्या उस केस में भी हमें यहाँ कंपनी कोई रजिस्टर करवानी पड़ेगी? मैडम आपका सवाल ये है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को, हाँ जी। तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर कराने की जरूरत है या नहीं? हाँ जी। नहीं, उस सूरत में आपको जरूरत नहीं है। वो लोकल कंपनी विल एक्ट एज योर रिप्रेजेंटेटिव। और वही लोकल कंपनी विल आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर द मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट दे विल हैंडल एवरीथिंग। इमरान, वैसे तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर लो ना 3-4 दिन, बिल्कुल ठीक हो गए। आधा घंटा लगा है, फालतू बातें करना खत्म हो। शुक्र है खुदा का। रियाज साहब, ले तुम्हारे बॉस तो उधर चले गए, उनका फोन ही नहीं रुकता। हाँ जी। और दूसरा बड़ा अच्छा उन्होंने शाह साहब कम्युनिटी के हेड भी हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर किया आपको कि यहाँ पे क्लियरेंस जो है ना इज़ वेरी इजी प्रोसेस। ये इज़ वेरी डिफरेंट देन अदर। इस जीसीसी के अंदर बड़ा क्लियर, क्योंकि बिकॉज लॉ अप्लाई करता है यहाँ पे हर चीज़ में। तो स्टैंडर्ड ड्यूटीज़ हैं, 5% कस्टम ड्यूटी है, वो स्टैंडर्ड ड्यूटी है। और जो क्लियरेंस कंपनीज हैं यहाँ पे और पीआरओ जाके वहाँ पे यहाँ पे पोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियरेंस जो है यहाँ पे बिल्कुल कोई इशू नहीं है। दिस इज वेरी इजी, अल्हम्दुलिल्लाह। वलीद वांट्स टू से समथिंग। शॉर्ट आंसर करना, वरना तुम्हें भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। हाँ, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि वो यहाँ की एफडीए से भी अप्रूव्ड हो, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपका पार्टनर यहाँ का लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो ये आपको कहेगा कि आप इसकी सारी हमें जो है लीगैलिटीज क्लियर करके दें। तो ये मेक श्योर कीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके, ये ना हो कि आपका किससे क्लियर्ड हो आप कह रहे हैं? between them and their local partner here who will be the distributor. She will need a local partner in any case. No, she needs a local partner as a distributor. इनकी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जब पार्टनरशिप So what you're saying is कि इनको ये इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर जाली ना हो। इन्होंने ये इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। वो कहाँ से इंश्योर करेंगे? ये तो जब इनकी डील होगी, तो मैं इसलिए इनको अभी से एक हेड्स अप दे रहा हूँ कि ये मेक श्योर करें, क्योंकि अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट है आपका, तो आप लोकल एफडीए के जितने भी कंप्लायंसेस हैं वो आप मेक श्योर करें कि क्या वो आप क्या आपके खुद ही क्लियर कर देंगे और वो डॉक्यूमेंट है, या आपका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर। ये चीज़ पे फिर आपकी जो इम्पोर्ट होगी यहाँ पे वो ज़रा इजीली रिलीज हो जाती है, ज़रा क्लियरेंस उसकी इजी हो जाती है। आप माइक लें दोबारा। आपका जवाब जो है वो इकराम साहब ने दे दी है। ये आपको जस्ट सजेशन दे रहे हैं। आपसे पहले कोई और क्वेश्चन है या? सर आपको दोबारा चांस देता हूँ, माइक इधर दे दें। हाँ प्लीज पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है, मेरा ताल्लुक मेट्रो मिलन अगरबत्ती से है, पाकिस्तान से। पेट्रोलियम? मेट्रो मिलन अगरबत्ती से। मेट्रो मिलन अगरबत्ती, जी बिल्कुल। हमारा जो बिजनेस डायनेमिक है वो ऐसा है कि हम मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ। हमारा दुनिया के 50 मुल्कों में एक्सपोर्ट है और हमारा दुनिया में कहीं भी ऑफिस नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। और हमारा जो है वो जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होती है, और इम्पोर्टर्स जो हैं, जो हमारी जिस पूरी दुनिया में जहाँ भी इम्पोर्टर्स हैं, उनका काम होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स वो करते हैं। सर आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि ओमान के अंदर मेरी कपल ऑफ इम्पोर्टर्स से मुलाकात हुई है एंड दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स। हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं आर बेटर देन देम, और मैंने प्राइस रेंज को भी देखा है, वी आर लोअर देन देम। तो आप में से कोई मुझे किसी भी पाकिस्तानी अंडरस्टैंड करें how to break into a market that has a bias against this country। सादा सा सवाल है, पहला पत्थर कैसे मारोगे? किसने जवाब देना है? हाथ ऊपर करो, माइक पकड़ो और जवाब दो। पहला पत्थर कैसे मारोगे? आपके सवाल के अंदर ही जवाब था कि आप ऑलरेडी 50+ कंट्रीज में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जितनी कंपनियों के साथ आपकी मीटिंग हुई है, वो इनकार कर रहे हैं। वो आपके साथ काम करने पे तैयार नहीं है। दे आर इंडियन इम्पोर्टर्स, वो इंडिया की अगरबत्ती, क्योंकि
जो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दुनिया में, या पाकिस्तान से हम हैं या मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया, तो क्योंकि लुलू वगैरह ये सब जो है वो इंडिया के इम्पोर्टर्स को। मैं आपको एक मशवरा दूंगा जी प्लीज। मैं टोटली आपसे सिंपैथाइज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक जिस मुल्क का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी कभी सिंगल कंट्री मल्टी प्रोडक्ट एग्जीबिशन ओमान में नहीं हुई, आपकी हो गई है ना? जी बिल्कुल हो गई। आप अपना बायस जो है ना, एक होता है पहले ही अपने आप को डिफीट कर लेना, आप दिल से ये खदशात निकालें, प्रॉपर तरीके से जाके मार्केट करें, डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है कि ये बायस जो है ना आपके दिल में र्यूमर मॉन्गरिंग और बाकी चीजों से फैला। सर मैं सिर्फ एक लिंक चाह रहा हूं इनमें से किसी का, जो मुझे कोई एक ऐसा इंपोर्टर दे दें जो कि अगरबत्ती इंपोर्ट कर सकते हो। सवाल क्या बात है सर? एक्सक्यूज मी, आप इस तरह करें, आप इधर मीरा मार्केट है, आ रहा हूं, मीरा सुपर मार्केट है, उसमें उनके जीएम जो है वो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बहुत प्रमोट करते हैं। आप उनसे मिले, वो आपको यकीन। सर नाम जोर से लीजिएगा। सर मीरा मार्केट। मीरा, ठीक है जी। आप मीरा की मार्केट, हिज नेम इज हारिस, he leads AZK engineers, he has built the second largest earthfill dam। मसला आज सारा पता है क्या है, ये सारी बिग फिश बैठी हुई हैं, बड़ी मछलियां जो छोटी मछलियों को खा के बड़ी हुई हैं, तो ये आप छोटी मछलियां हैं, जो आपका सवाल है वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। सर मैंने तो कहा कि देखें मीरा में जाएं, वहाँ पे जो उनका नाम है दानिश साहब, उनको आप मिलिए, वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान। That's the answer सर, दानिश साहब को मिलना है। दानिश साहब वहाँ के CEO हैं, GM हैं, उनसे आप मिलिए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट वो जरूर लेंगे, आप उनको मिलिए। नाल गड्डी हारिस में भी बिठा के ले आ जाओ। ओके जी, ले आ जाओ नाल फाड़ के। इनसे जरूर कोऑर्डिनेशन कर लूंगा। सर दूसरी बात ये कि जो जितने बड़े बायर्स हैं, मैंने आपके साथ कमिट किया हुआ है, लुलू नेस्टो हाइपर मार्केट्स, हम इंशाल्लाह आपको कनेक्ट करेंगे। इमरान, you are making a promise to me that you will connect Metro Milan Agarbatti to a good distributor. Yes sir, I will do that because we want to help you and we will help you inshallah. इमरान साहब मैं आपको इसका फीडबैक दूंगा इनके उसके बाद। यार जब वो भी मेरे ही हैं। मैं ठीक है, लेकिन मैं आपको फीडबैक भी जरूर दूंगा इसका। चले आपकी बात से कम सुबह से मैं पहली दफा मुस्कुरा तो लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच। और मेट्रो मिलन अगरबत्ती पे हम बड़े हुए हैं, हमारे घरों में बरकत बढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, तो आपको भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ मिल जाएगा, अल्लाह ताला डिस्ट्रीब्यूटर। और आपको और कोई ना मिले तो कोई अगर जुगाड़ लगानी हो तो असगर साहब कहीं बैठे हैं, असगर साहब चले गए हैं। एक तो डिसिप्लिन पाकिस्तानियों में नहीं, हाथ मिलाने चले गए। मैं आपसे कांटेक्ट डिटेल्स ले लूंगा, फिर मेरा काम है फिर इंशाल्लाह। ये मेरा कार्ड है, 24 घंटे का व्हाट्सएप नंबर है, ये लो। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? I would like just to introduce the Chenwan here, it's Pakistan's top brand. There is a one problem. Chenwan has to sit there. These are Omani success stories. You cannot introduce Chenwan on this table. He is the most revered guest for us. But these are different. These are those people who are operating within Oman. He can sit here, introduce him in one line, but there are so many questions. These are poor Pakistanis. मसला ये है इतने सारियां वडियां मशीनां बह गई हैं तला दिलावा। देखिए, एक मैं आपको और छोटी एक सजेशन देता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ लाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक काम कीजिए कि आप यहाँ बिजनेस विजिट पे आएं, जो कि 20 डेज मिनिमम होता है। उस पे आपके पास ये एक टाइम होगा कि आप यहाँ इनके 3-4 सिटीज जो हैं उनको स्टडी करें, वहाँ के रिटेल सेक्टर को देखें, उसके बाद आपको एक मालूम हो जाएगा कि आपको करना क्या है यहाँ पे। वो 20 डेज में आपको पूरी पिक्चर क्लैरिटी के साथ मिल जाएगी। थैंक यू। देखें, दोबारा रिपीट करता हूं जो इम्पोर्टेंट बात है, सर ने ये बताया कि ये आप घर बैठ के ऑनलाइन करके दुबई में जाके आप वो डेजर्ट सफारी करके वापसी पे ओमान में एक रात लगा के ओमान में बिजनेस नहीं कर सकते। 20 दिन का बता रहे हैं, 20 दिन का बिजनेस ट्रिप करें, धक्के खाएं, दफ्तरों में जाएं, पाकिस्तानियों से मिलें, अपने नोट्स बनाएं, तब आप ओमान में बिजनेस कर सकते हैं। एज अ टेल एंड ऑफ अ ट्रिप टू दुबई यू कांट डू दिस। अली, अभी देता हूं
एक दो लोग लाइन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अली, नेक्स्ट क्वेश्चन अली को दे दो, अली की बारी है, फिर दें अली को जी। सॉरी कौन है? सर ने पहले एक पूछ लिया है, दोबारा पूछे सर, आपकी बारी। पहली दफा पूछे सर, 2 सवाल पूछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक मोहम्मद आसिफ है। स्पार्को पेंट कंपनी है, पेंट मैन्युफैक्चरर हैं हम। मोर देन 3 अमरीन मस्कट डेली वालों को बुलाएं। मोर देन 3 डेकेड्स हो गए हमें पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए। मेरा सवाल ये है कि आया कि मुझे यहाँ पे ब्रांच ऑफिस बनाना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बेहतर रहेगा कि या फिर मुझे इंडस्ट्री की तरफ सोचना पड़ेगा? तो ये मेरा सवाल था, काइंडली इस बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ओमान में आया हूँ, तो उस वाले से ज़रा काइंडली बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की फील्ड से हैं, तो उस वाले से मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी लीड बेहतर रहेगी। थैंक यू वेरी मच। सर यहाँ पे ओमानी प्रोडक्ट के अलावा नहीं चल सकती, इंपोर्ट का कोई फायदा नहीं। डायमंड पेंट्स वाले भी आए थे यहाँ पे और उनको यही पता लगा था कि यहाँ पे आपको या तो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक नेशनल पेंट्स और एक जोतन। यहाँ सिर्फ ओमानी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकेगी, इंपोर्टेड नहीं हो सकेगी। तो अगर आपने बिजनेस करना है तो यहाँ अपना प्लांट सेटअप करें। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस तरह हम लोग असिस्ट कर सकते हैं ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन के लिहाज से, अगर हमें बिजनेस टारगेट करना हो? आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं। आप पाकिस्तान के टॉप बिजनेसेस से जाके पहले मिले, अपने क्रेडेंशियल्स बताएं, आप एम्बेसी से राब्ता करें, अपने क्रेडेंशियल्स बताएं। द एम्बेसी एक्ट्स एज एन इंटरएक्टिव टूल between the Pakistani community and the auditors and the businesses. There is no other way except to work and fight your way up. There is no shortcut to it. Next question. अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है, मैं मस्कत फार्मेसी से हूँ। वो भाई का क्वेश्चन था तो सर उसके बारे में ये है कि जो आपको जोर से बोलना पड़ेगा। मस्कत फार्मेसी तो हर कोने में और इतने बड़े बड़े उसके बिल बोर्ड्स हैं। बोल आप इतना आहिस्ता रहे हैं। एक्चुअली सर सर्जिकल आइटम्स के लिए इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फार्मा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कोई भी कंपनी यहाँ पे है नहीं। तो मेरा इन सब से क्वेश्चन है कि आप क्या किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं एज अ लोकल कंपनीज़ जो यहाँ पे आई हुई हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कंपटीटर्स हैं मोस्टली इंडिया से हैं या बाकी नेबरिंग कंट्रीज से हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो सिंपली नो बोल देते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। क्या वो किसी खास वजह से नो बोलते हैं या ट्रेंड है कि उन्होंने पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल्स को नहीं? दोनों चीज़ें हैं इसमें। हमारी क्वालिटी का भी है सर हमारे पास, क्योंकि कोई भी आइटम यहाँ पे लाने से पहले उसको ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और वो जैसे ही जाता है वो उनके जो देखते हैं फिर वो मतलब ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड वैसे बड़ी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके लिए फैसिलिटेशन चाहिए हमारे यहाँ और पूरा वो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पास में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर द क्वेश्चन इज फार्मास्यूटिकल की पाकिस्तानी कंपनी, मेड इन पाकिस्तान कंपनी इसलिए नहीं आ सकती कि ओमान मेडिकल एंड स्पेशलिटी बोर्ड में ट्रेंड है कि उस पर यस नहीं करता, ये सवाल है। सर ऐसा है कि फार्मास्यूटिकल में पाकिस्तान से जो भी कंपनी यहाँ पे आएगी, एक तो एटलीस्ट वो जीसीसी किसी एक कंट्री में रजिस्टर्ड होनी चाहिए पहले ये है। जो कंपनी फार्मास्यूटिकल्स की आएगी इट शुड बी रजिस्टर्ड इन अनदर। इसकी क्या वजह सर? सर ये मिनिस्ट्री के तकरीबन 4-5 साल पहले से जो है ना बाई लॉ उन्होंने अपने ये किए हुए। ये बाय लॉज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक सिस्टर जीसीसी कंट्री में पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। आगे सर इसमें जैसे भाई ने कहा ना, ये भी हमारी क्वालिटी सर्टन चीज़ें आ जाती हैं इसमें। किसी ने भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या वहाँ से फोकस नहीं किया। हमारे कंट्री के ज़्यादा श्रीलंकन है या अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ सप्लाई ज़्यादा जा रही थी, जीसीसी में ना होने के बराबर थी, और टिल नो एज इट इज़ ये सर। असल तो अगर आपने स्टोन वॉल पे या इस पे पत्थर मारना हो तो क्या तरीका है? एम्बेसी क्या करे, हुकूमत क्या करे, हम लोग क्या करें फार्मास्यूटिकल्स को लाने के लिए? नो डाउट सर इसमें वर्क कर सकते हैं विद एम्बेसी कोलैबोरेशन और मिनिस्ट्री के साथ हम विजिट कर सकते हैं, इसमें काम हो सकता है सर। क्योंकि बड़ी क्रेडिटेबल कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल्स बना रही हैं। एक तो सर ये है यहाँ के, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, जीएसके है,
इंग्लैंड से है। यहाँ का मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का ये भी रूल है कि जो प्रिंसिपल कंपनी है यहाँ पे आइटम वहीं से आएगी। लाइक जीएसके का प्लांट तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पे जो आइटम्स आएंगे वो प्रिंसिपल कंपनी से आएंगी। प्रिंसिपल कंपनी वो ब्रांडेड कंपनीज के लिए हैं, लेकिन जो जेनरिक में बनाते हैं लोकल, उसके लिए तो ये रूल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जेनरिक्स बहुत अच्छे कंपनीज हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज है एक्चुअली ओरिजिनली, तो ब्रांडेड की दे आर इन ओमान राइट नाउ दोस कंपनीज। सर यहाँ पे ब्रांडेड चीजें जो होती हैं वो स्पेशली उसी से आती हैं। जीएसके का होगा वो जीएसके से आएगा, सरले का सरले से ही आएगा, फाइजर का फाइजर से। नॉन ब्रांडेड जेनरिक फील्ड में क्या स्कोप है? सर यहाँ पे मान के दो कंपनी एनपीआई है, नेशनल फार्मास्यूटिकल जो है इंडस्ट्री, ये रुसेल में है, और एक है सलाला में जैनिका ना क्या नाम है, जाइनोवा, सॉरी जाइनोवा कंपनी जो है ना वो सलाला में है। एक तीसरी है वो यहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रही है, उनकी प्रोडक्शन अपनी नहीं है, वो सिंपली पैकिंग कर रही है। तो ये एक ह्यूज मार्केट है। आपको अगेन पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स में Asghar Saab is a practitioner for the past 15 years. So get in touch with Asghar Saab. Just as people here are specialized in their own fields, you should get in touch with him, have a long meeting with him. Yes, sir. I'm ready to attend. मैं क्या ऐड करता हूँ कि यहाँ पे जो भी कंपनी आती है तो उसको यहाँ पे लोकल चाहिए कंपनी जो उसके प्रोडक्ट रजिस्टर करवाए मिनिस्ट्री के साथ, और फिर उनको उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करे, मार्केटिंग करे और मार्केट में लेके जाए। क्योंकि हमारी कंपनीज अगर प्रोडक्ट्स लेके आती हैं तो वो खुद जाके मार्केट में तो उसको फिर सेल नहीं करा सकते, तो लोकल पार्टनर उनके लिए फार्मा में ज़रूरी है। फाइन, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, एक सेकेंड, लेटर ऑन। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शेख अब्दुल रहमान मग्गू है। मैं मिनरल ग्राइंड, मेरी कंपनी है एएन इंडस्ट्रीज, मिनरल ग्राइंडिंग और मिनरल ब्रांडिंग की कंपनी है आपकी? मिनरल ग्राइंडिंग एंड बेनिफिकेशन। कहाँ बेस्ड है आप? हम जी यूएई और ओमान भी थोड़ा बहुत हमारा बिजनेस। थैंक यू। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मिनरल्स की क्या मार्केट, मतलब मिनरल अगर एक्सप्लोरेशन का और अगर मटेरियल चाहिए हो लाइक क्रोमाइट, उसका क्या तरीका है, और यहाँ बेनिफिकेशन वगैरह हो रही है, ये क्या स्कोप है यहाँ पे मिनरल बेनिफिकेशन वगैरह में? सवाल ये है कि वो मिनरल्स में कुछ करना चाहते हैं, पहले 2-3 चीजें क्या करेंगे? उसकी सबसे आप पहले मिनरल की यहाँ पे बकायदा पूरी मिनिस्ट्री ये एक सेकंड कमर बेटे, ये बर्तन रखो और यहाँ से गायब हो जाओ, ये चाय देने की कोई जगह नहीं है। चले। हाँ जी। मिनरल्स के हवाले से यहाँ पे पूरी एक वजारत उन्होंने कायम कर रखी है। आप उसमें जाएंगे और आप उनसे पूछेंगे कि मैं जो रिलेटेड आप माइनिंग पूछ रहे हैं वो करना चाहता हूँ, तो उसके रिलेटेड आपके पास क्या फिजिबिलिटी रेडी है, वो खुद आपको बताएंगे। और उसके हवाले से वो आप कौन सा ऑफिस है कमर? ये मिनरल्स के रिलेटेड सर ऑफिस, मिनरल्स एंड एनर्जी के नाम से मिनरल्स एंड मेटलर्जी का ऑफिस है, जो आपको बताएगा कि आप जिस मिनरल की बात कर रहे हैं उसका ओमान में क्या स्कोप है। और उनके पास बहुत सारी फिजिबिलिटीज रेडी भी हैं कि जैसे कुछ एरियाज उन्होंने एलोकेट किए हुए हैं, उसकी स्टडी उन्होंने की हुई है कि यहाँ पे क्रोमाइट है, यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं वो आपको मैंगनीज है, तो वो आप उनसे स्टडी लेके उस पे आप किस पे काम करना चाहेंगे ये आपने अपनी। मैं तो बेनिफिकेशन के, मतलब जैसे क्रोमाइट है तो उसकी बेनिफिकेशन के, अगर लो लेवल का क्रोमाइट है तो उसको हम बेनिफिकेट करके उसकी अपग्रेडेशन करेंगे। उनके पास पूरी स्टडी है सर। यहाँ पे क्रोम के हवाले से ओमान क्रोमाइट जो है बहुत बड़ा ये उनका सेटअप है। आप इंपोर्ट करने के मुतालिक सोच रहे हैं या वेरिफिकेशन के, आप क्या सोच रहे हैं? लोकल बिजनेस के हवाले से कि यहाँ पे अगर बेनिफिकेशन की जाए तो उसका स्कोप है या तो उसका आंसर वो दे दिया उन्होंने। यू विल हैव टू गो टू द ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्रोमाइट से भी आप रब्ता कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे जानना है कि रियल एस्टेट का स्कोप क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के टर्म से? फयाज साहब, रियल एस्टेट वो पाकिस्तान से पैसा ला के यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या करें? देखिए, रियल एस्टेट के बारे में यह है कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर हैं। द सिचुएशन के विच सेक्टर यू वांट टू स्पेंड in terms of freehold investment and leasing for 90 years. Freehold investment, we have a limited places here and they are bit away from the city. So if you're going to consider that area, then you have to start a multi-story building and then you can sell the apartment. But even then, that foreign investor is not allowed to do any kind of real estate in Oman, except you have to be one Omani local partner with you.
if I make this investment through my company, will that be okay? If it's investment from your company, that the building or that the premises we are going to be built, that can be used only for your purpose, for your internal offices or your residential of your staff. You are not allowed to sell any kind of commercial activities unless you are not involved in the local sponsor with you. Okay, thank you. Does that answer your question, sir? Yeah, I understand. If you can have another leading question, please ask. No, that's all. I was just wanted to know overall. I can speak to you later. Please do. These people have spent decades in this field. Next question, please. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबारक अली मिसबा है। हम ओमान में कुछ ला नहीं रहे बल्कि ओमान से लेके जा रहे हैं। रॉ स्किन जो होती हैं, काउ हाइड्स, माइस की, गनम की, यानी बकरी और शीप की, ये यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। ये हाइट्स की बात कर रहे हैं जी, रॉ हाइट्स की? हाँ सर, रॉ हाइड्स जी हाँ। हाँ। लेकिन अब जो सेकंड मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हैं, ई मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आप क्या बताते हैं कि स्कोप है यहाँ पर? डिजिटल मार्केटिंग में? जी सर। डिजिटल मार्केटिंग ऑफ व्हाट? किस चीज़ की? ई कॉमर्स और ऑल ओवर जो भी डिजिटल मार्केट में आता है, वेबसाइट्स हैं, दिगर हैं, बड़ी कंपनीज को सर्व करना है। देखिए, अगर तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट लेदर प्रोडक्ट है कोई, जी तो वो ये मार्केट तो बड़ी छोटी है उसकी, क्योंकि यहाँ सीजनल जो है अगर आप देखें कम है जी, और करना है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं और आप उसकी ऑफसेट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लेदर प्रोडक्ट में हम वन टू ऑल और प्रोडक्ट गुड्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने मार्केट अच्छी नहीं पाई, इसलिए गुड्स में कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन यहाँ से हम खालें लेकर जा रहे हैं। रॉ हाइड्स यहाँ से हम गुज़श्ता 10 साल से इंपोर्ट कर रहे हैं। सर, आई वांटेड टू ऐड ऑन दिस।